آئے ہم بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے مقدسہ آستر کی کتاب اور اس کا پہلا باب اور اس کی 16ویں آیت سے لے کر 22ویں آیت تک پڑھیں۔ سب نے حوالہ نکال لیا؟ ہاللیلویہ۔ اور مموکان نے بادشاہ اور امیروں کے حضور جواب دیا کہ وشتی ملکہ نے فقط بادشاہی کا نہیں بلکہ سب عمرہ اور سب لوگوں کا بھی جو اکسویرس بادشاہ کے کل صوبوں میں ہیں قصور کیا ہے، کیونکہ ملکہ کی یہ بات باہر سب عورتوں تک پہنچے گی جس سے ان کے شوہر ان کی نظر میں ذلیل ہو جائیں گے۔ جب یہ خبر پھیلے گی کہ اکسویرس بادشاہ نے حکم دیا کہ وشتی ملکہ اس کے حضور لائی جائے، پر وہ نہ آئی، اور آج کے دن فارس اور مادی کی سب بیگمیں جو ملکہ کی بات سن چکی ہیں بادشاہ کے سب عمرہ سے ایسا ہی کہنے لگیں گی، یوں بہت حقارت اور طیش پیدا ہوگا۔ اگر بادشاہ کا منظور ہو تو اس کی طرف سے شاہی فرمان نکلے اور وہ فارسیوں اور مادیوں کے آئین میں مندرج ہو، تاکہ بدلا نہ جائے کہ وشتی ملکہ بادشاہ کے حضور پھر کبھی نہ آئے، اور بادشاہ اس کا شاہانہ رتبہ کسی اور کو جو اس سے بہتر ہے عنایت کرے، اور جب بادشاہ کا فرمان جسے وہ صادر کرے گا اس کی ساری سلطنت میں جو بڑی ہے شہرت پائے گا، تو سب بیویاں اپنے اپنے شوہر کی کیا بڑا کیا چھوٹا عزت کریں گی۔ یہ بات بادشاہ اور عمرہ کو پسند آئی، اور بادشاہ نے مموکان کے کہنے کے مطابق کیا، کیونکہ اس نے سب شاہی صوبوں میں صوبہ صوبہ کے حروف اور قوم قوم کی بولی کے مطابق خط بھیج دیے کہ ہر مرد اپنے گھر میں حکومت کرے اور اپنی قوم کی زبان میں اس کا چرچا کرے۔ خداوند کے زندہ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث سے برکت ہو۔ تشریف رکھیں۔ ہاللیلویہ۔ سالوں سال پہلے اس پر خدا کا خادم برادر برانم مرد اور عورت کے معیاری کردار پر بات کرتے ہیں کہ ایک مسیحی عورت اور ایک مسیحی مرد کا معیار کیسا ہونا چاہیے، ایک شادی شدہ عورت اور اس کی بیٹیاں اور اس کے بیٹوں کا گھر میں لیول کیسا ہونا چاہیے، مسیح گھرانہ کس طرح کا ہونا چاہیے۔ اس اقتباس کو جو میں نے مقدسہ آستر کی کتاب میں سے پڑھا ہے، مرد اور عورت کا معیاری کردار، اس کو ہم یہ عنوان دیں گے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ بھائی ملوکا نے بڑی خوبصورت دعا کی کہ تیرا بندہ نہ بولے، تیرا روح اس میں ہو کر بولے، آمین۔ جب کہیں خداوند کا کلام پڑھا جاتا تو وہ کوئی بندے کا کلام نہ ہوتا جو اس کو بیان کر رہا ہے، وہ خداوند کا ہی کلام ہوتا، اور جو بندہ کھڑا ہوتا کوئی بھی کیوں نہ ہو وہ صرف وہ بیان کر رہا ہوتا کہ خداوند کا کلام یعنی خدا کیا فرماتا ہے۔ آج بھی اگر میں آپ کو خداوند کی ٹھیک ٹھیک باتیں بتاؤں تو بیٹیاں اور بہنیں اور بزرگ اور بھائی، خدا کے لیے مجھے اپنا بھائی بیٹا سمجھیں، مجھے خدا کا خادم جانتے ہوئے یہ دیکھیں کہ میں صرف خداوند کا کلام آپ تک پہنچانے والا ہوں، آمین۔ ہر ایک اپنے اپنے اوپر اپنی ذات پر غور کرے گا کہ خداوند کا کلام کیا فرماتا ہے اور میں کیا کرتا ہوں، کیا کرتی ہوں، آمین۔ اب دیکھیں، کیا جب خدا کچھ بولتا ہے کسی انسان کے اندر آ کر تو کیا جوے بندھن ٹوٹتے نہیں؟ کیا جوے بندھن توڑے نہیں جاتے اس کی قدرت سے؟ کیا وہاں پر زندگیاں نہیں بدلتی؟ آج بھی وہی خدا ہوں، آج بھی جب وہ اپنے کلام میں سے آپ کے ساتھ بات چیت کرے گا۔ کتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں جو کہتے ہیں میں مسیح ہوں؟ آپ مسیح نہیں ہیں بہن؟ کتنے لوگ یہاں پر بیٹھے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں مسیح ہوں؟ ہاللیلویہ۔ اب میں آپ کو آئینہ دکھانے لگا ہوں۔
جس میں صرف آپ خود اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں. ہاللیلویا. خدا کا کلام کیا فرماتا ہے؟ اس دنیا میں خدا نے فارس کے بادشاہ کو، اکسویروس بادشاہ کو ساری دنیا اس کے قبضہ میں کر دی، اور اس کے مطابق ہندوستان اس علاقے میں آتا ہے، اور وہاں پر اس نے ایک بہت بڑی ضیافت کی کہ خدا نے جو مجھے اتنا رتبہ دیا، مرتبہ دیا ہے، میں جتنے بھی صوبے میرے تابع ہیں میں ان سب کو بلاؤں اور ان سب کو اپنا شاہی رتبہ دکھاؤں، اپنا محل دکھاؤں. ایک بہت بڑی ضیافت کی اس نے، اور اس کی بیوی نے بھی علیحدہ عورتوں کی ضیافت کی کہ جتنے بادشاہ کے عمرہ، سردار اور دور دراز سے بادشاہ کے انڈر کام کرنے والے جتنے بھی مرتبہ رکھنے والے لوگ آئیں گے وہ بادشاہ کی طرف جائیں گے، اور ان کی بیٹیاں اور ان کی بیویاں بادشاہ کی بیوی کی طرف جہاں پر اس نے اپنے لیے ایک ضیافت تیار کی ہے وہ اس جشن میں جائیں گے. ہاللیلویا. اب بادشاہ ایک وقت آیا، تخت پر بیٹھا ہے بادشاہ، اور اس وقت بادشاہ نے حکم جاری کیا اور اس کے دل میں آیا کہ اب وقت ہے کہ میں اپنی بیوی کو بلاؤں اور اپنے ساتھ تخت نشین کرواؤں اور ساری دنیا کو دکھاؤں یہ میری بیوی ہے. اور جب اس نے اپنی بیوی کو بلایا اور اس کی بیوی نے وہاں سے کیا پیغام بھیجا، بادشاہ سے جا کر کہہ دو کہ میں نہیں آؤں گی. اور وہاں پر جتنے ادھر لوگ تھے اتنی عورتیں ادھر بیٹھی تھی، ان کی بیٹیاں اور ان کی بیویاں تھیں. اب مسئلہ بن گیا. جب پیغام دینے والے نے واپس آ کر پیغام دیا، اس کے کان میں بادشاہ سلامت، آپ کی بیگم کہتی ہے بادشاہ سے کہو کہ میں اپنی میٹنگ دے رہی ہوں، میں تخت پر بیٹھی ہوں، میں سجی سوری ہوں، میں یہ میٹنگ چھوڑ کر کیوں مردوں کی میٹنگ میں تیرے کہنے پر آؤں؟ میں نہیں آؤں گی. کیا آج بھی ایسا نہیں چل رہا؟ کیا آج بھی ایسا نہیں ہے کہ آج بھی عورت اپنے مرد کو اس طرح بے عزت نہیں کر رہی؟ مرد وجبے میں عورت کو بلاتا، عورت نہیں آتی. مرد بڑا فخر کہتا ہے کہ آج میں سارے اکٹھے ہوئے، میں اپنی بیوی کو بلاؤں، دکھاؤں کہ یہ میری بیوی ہے، اور بیوی وہاں سے اس کو جھاڑ پہنچ کر کے واپس بھیج دیتی ہے. کلام کیا فرماتا ہے؟ اور بادشاہ کو بڑا طیش آیا، بڑا غصہ آیا، اور جو اس کے عمرہ تھے جن کے ساتھ وہ صلاح مشورہ کرتا تھا، اس کے مشیر تھے، ان سے اس نے مشورہ کیا کہ بتاؤ میں کیا کروں. اس نے کہا اے بادشاہ سلامت، اگر ہم سے پوچھتا ہے تو دیکھ تو ہمارا بادشاہ ہے، اور یہ خالی تیری بے عزتی نہیں ہوئی، تیری بیوی نے جتنے بھی تیرے ساتھ عمرہ ہیں اور جتنی بھی دنیا کے عمرہ یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں ان سب کی بے عزتی کی ہے، کیونکہ تو نے انہی کے ساتھ ملانے کے لیے اس کو بلایا. آج بھی جو عورت اپنے مرد کی تابع داری نہیں کرتی وہ اپنے مرد کی بے عزتی کرتی ہے. آپ جتنی بھی شادی شدہ بہنیں ہیں، کیا آپ اپنے مردوں کی عزت کرتی ہیں؟ مجھے نہیں بتانا، خدا یہاں پر یاد رکھیے گا. کیونکہ کلام کیا فرماتا ہے کہ شاہی فرمان جاری کیا جائے، اور بادشاہ مادی اور فارسیوں کو جو قانون لکھ دیا جاتا ہے وہ دوبارہ نہیں بدلتا. اور یہاں پر تو خداوند خدا کا قانون ہے. یہ آج کی عورتیں کیوں بدل رہی ہیں؟ وہ ایک ملک تھا مادی اور فارس، ان کے بادشاہوں کا قانون نہیں بدلتا تھا، لیکن آج دیکھیں وہاں پر کیا کچھ بدلا ہوا ہے، کتنے قانون بدل گئے ہیں. لیکن یہ واحد خداوند یسوع مسیح کا یہ پاک کلام ہے جو نہیں بدلتا. اس کو کیوں آج بدل رہی ہیں عورتیں؟ آج کی عورت کو کیا ہو گیا ہے؟ ہاللیلویا. اے بادشاہ سلامت، حکم جاری کیا جائے اور آپ اس کے اوپر اپنی مہر لگا دیں کہ آج کے بعد یہ ملکہ تیرے سامنے کبھی زندگی تیری میں کبھی باپ تیرے سامنے کھڑی نہ ہو، اور اس کا شاہی رتبہ اور مرتبہ ابھی اسی وقت اس سے چھین لیا جائے. اور جتنی وہاں پر عورتیں تھیں
उन सब के सामने उसके सर में से, सर के ऊपर से ताज छीन लिया गया। याद रखिएगा, जो अपने मियाँ की इज्जत नहीं करती, खुदा उसके अंदर से वो सारी ब्लेसिंग छीन लेता है और सिर्फ वो नाम की बीवी रह जाती है। कलाम फरमाता है कि औरत अपने मर्द की ताबेदारी करे। जो कोई भी औरत अपने मियाँ के साथ अदावत रखती है, अपने मियाँ को दिल ही दिल में गालियां देती है, उस औरत से बुरा इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है। क्योंकि कलाम फरमाता है, जिसने अपनी खामन की इज्जत की, उसने अपने खुदावन की इज्जत की। आपने खुदावन को नहीं देखा तो आप खामन को देख के उसकी नहीं इज्जत करती तो खुदा की क्या इज्जत करेंगी? आमीन। यहाँ पर बड़े हाथ उठे थे, मैं मसीह हूँ। मसीह का मतलब है कि यीशु मसीह, खुदा पाक रूह आपके अंदर। हालेलुया। कौन कौन है अभी पता चलेगा। पैदाइश की किताब 2 बाब 26वीं आयत से 28वीं आयत तक, वहां पर लिखा है, खुदा ने इंसान को पैदा किया और उसने कहा, मैं यहोवा हूं। हालेलुया। 4था बाब जब पढ़ते हैं, 4थे बाब के आखिर में, जब सेत के यहाँ नूस पैदा हुआ और तब से ही सब लोग यहोवा का नाम लेकर दुआ करना शुरू हो गए, दुआ करना शुरू हो गए, यहोवा की इबादत करना शुरू हो गए। और यहोवा का क्या मतलब है? यहोवा का मतलब है मैं हर जगह मौजूद हूं। यहोवा का क्या मतलब है? मैं हर जगह मौजूद हूं। और वो हर जगह मौजूद है, वो कौन है? वो खुदावंद यीशु है, जो यहोवा है, यहोवा यशवा। हर जगह पर सिर्फ खुदावंद मौजूद है और कोई मौजूद नहीं है। और उसने जमीन पर जब अब्दियत से अपने आप को निकाला तो उसका कलाम फरमाता, मैं अल्फा और ओमेगा, यानी कि मैं अलीफ और बड़िए हूं, मैं इब्तिदा और इंतहा हूं। सबसे पहले खुदा ने खुद अपने आप को इंसान जैसा बनाया। खुद जिसने बजाते खुद बेवजूद से वजूद लिया। यहोवा का क्या मतलब है? जो हर जगह पर हाजिर और नाजिर है और जिसने बेवजूद में से अपना वजूद लिया और वो जलाली बदन में एक इंसान बनकर जमीन पर जाहिर हुआ। तो ये कौन है जो इस तरह जलाली बदन में जमीन पर जाहिर हुआ? ये खुदावन खुदा है, खुदावंद यीशु है। अब खुदा ने यहां पर जमीन पर इंसान को अपनी सूरत और शबीह पर पैदा किया, क्योंकि वो खुदा बाप है और ये उसको पसंद आया कि वो अपनी मंशा से, यानी अपनी मर्जी से एक आरजी बेटा बने। गौर से सुनिएगा, जब उसने खुद बेवजूद से वजूद लिया ताकि मैं अपनी मर्जी से एक आरजी बेटा बनूं, तारीफ हो क्योंकि उसने इंसान को मजाजी खुदा बनाया। हालेलुया। अब खुदा ने जब इंसान को जमीन पर बनाया तो आसमान का और जमीन का कुल इख्तियार आदम के पास था। क्या आप जानते हैं कि आदम के पास हवा के परिंदों चरिंदों का, जमीन के दश्ती जानवरों दरिंदों का और पानी की सारी मखलूकात का आदम के पास इख्तियार था। हालेलुया। ये खुदा ने इंसान को मजाजी खुदा बनाया और जमीन पर हर एक चीज उसके ताबिया कर दी। इसलिए वो अब हर जगह बजाते खुद नहीं होता। इसलिए ये खुदा ने इंसान को मजाजी खुदा बनाया, इसलिए अब खुदा हर जगह बजाते खुद, क्या लफ्ज इस्तेमाल है? बजाते खुद मौजूद नहीं होता। वो अपने खानदान में रहता है। वो अपने कौन सा खानदान? जो उसने जमीन पर पैदा किया है। खुदा के पास इख्तियार था कि जमीन इंसान की सल्तनत बने। आदम जमीन पर खुदा का बेटा था, उसके पास आसमान और जमीन का कुल इख्तियार था। वो जो कुछ चाहता था वो वही करता था। इसलिए खुदा मसीह यीशु ने क्या फरमाया? आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। उससे पहला जो आदम खाकी था उसके पास भी आसमान और जमीन का कुल इख्तियार था। वो कब छीना गया उसे?
जब उसके अंदर से एक बीवी निकली और जब उसके अंदर से औरत निकली, औरत ज़मनी पैदाइश है। खुदा ने औरत को डायरेक्ट तख्लीक नहीं किया। मुर्गी को मुर्गे को खुदा ने डायरेक्ट बनाया, शेर को शेरनी को डायरेक्ट बनाया, और मोर को मोरनी को, हरण को हिरनी को, कुत्ते को कुतिया को डायरेक्ट लहदा बनाया, लेकिन इंसान को अकेला बनाया और औरत को उसके अंदर से निकाला। ज़मनी पैदाइश है, औरत मर्द के मातहत है। ये कौन फरमाता है? ये खुदा उनका कलाम फरमाता है। हालेलुया। इसलिए आदम और हवा को खुदा ने अपनी सूरत, अपनी फितरत पर बनाया ताकि वो एक दूसरे के साथ एक तन हो और खुदा के साथ एक बन जाएं। मियाँ बीवी दो नहीं बल्कि एक हैं और वो खुदा के साथ एक बन जाएं। खुदा रूह है और खुदा ने हमारे अंदर रूह रखा है। हालेलुया। मर्द का किरदार, सबसे पहले खुदा को अव्वल दर्जा देना चाहिए। हमें सबसे पहले खुदा को अव्वल दर्जा देना चाहिए। इब्राहिम ने सबसे पहले खुदा को अव्वल दर्जा दिया। कहां पर? पैदाइश 14 बाब के अंदर, जब वो बादशाहों को मारकर वापिस आया और जो कुछ भी लूट का सामान लेकर आया उसने 10वां हिस्सा निकाला। हीरे, सोने, चांदी, मोते, बकरियां, गधे, बैल, सब कुछ उसने खुदा का हिस्सा निकाला। 10वां हिस्सा निकाल कर और वहां पर खुदा आसमान से नीचे उतरा और मलके सदक सालम की सूरत में खुदा अपने नबी के सामने खड़ा है और नबी ने उसको सिजदा किया और उसकी हजूर में ये 10वां हिस्सा हर एक चीज का डाल दिया। और खुदा ने उसे क्या दिया? खुदा ने उसे बरकत दी। और बरकत खुदा किस तरह देता है? खुदा ने उसे 2 चीजें दी, रोटी और मैं दी। क्या दी? रोटी और मैं। आज हम भी रोटी और मैं लेंगे, खुदा हमें बरकत देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप देखें, कलाम फरमाता सबसे पहला दर्जा खुदा का, लेकिन हम तो उसको 10वां दर्जा देते हैं। हालेलुया। जब हमारी कमेटी निकलती है हम क्या करते हैं? हम सबसे पहले लेने देने करते हैं। खुदा ने इतने पैसे दिए हैं, खुदा की कोई शुक्रगुजार नहीं। आमीन। फिर हम कहते हैं मैं बड़ा मसीह हूं। अगर आप अपने आप का किसी चीज के साथ मुआवजा करें, आपको खुदा से अपनी बीवी, अपने शोहर, अपने बच्चों, अपने पासबान और अपनी हर चीज से जो आपके पास है ज्यादा मोहब्बत करना है। और ज्यादा मोहब्बत किससे करना है? वो सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह पाक खुदावंद खुदा है जिसके आगे हर एक घुटना झुक जाता है। और अगर आप उसको अव्वल दर्जा देंगे तो वो भी आपको सबसे आगे खड़ा करेगा। हर काम में, जिंदगी की हर राह में, हर परेशानी में आपको अव्वल दर्जा देगा। आपकी परेशानी खत्म, आपकी परेशानियां खत्म, आपकी जिंदगी की हर परेशानी, हर दुख, हर बीमारी, हर मुकारी खत्म कर देगा वो आपकी जिंदगी से। और सबसे पहले आपको फतह देगा। कारोबार हो और घर में हो और कहीं चर्च कलीसिया में हो, वो आपको ब्लेस करेगा क्योंकि आपने उसको अव्वल दर्जा दिया है। हालेलुया। बहुत सारे लोग खुदा के हुजूर पैसे देने से बड़े शर्माते हैं, लेकिन जब फजूल खर्चियां करते हैं तब नहीं शर्माते, और जब खुदा के लिए करते हैं तो बहुत शर्माते हैं। याद रखिएगा, सबसे अव्वल दर्जा खुदावंद यीशु मसीह का है। जो कोई खुदावंद मसीह यीशु का अव्वल दर्जा देगा, खुदावंद उसको बड़ी बरकत देगा। ये कौन फरमाता है? ये खुदावंद मसीह अपने कलाम में फरमाते हैं, तू अपने सारे दिल से, अपनी सारी जान से, अपनी सारी ताकत से, कुव्वत से, रूह से, सच्चाई से, अक्ल से, दनाई से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। क्या मैंने गलत कहा? उसका अव्वल दर्जा है। आप जब ये दयाकी की बात आ रही है, ये बस ये ना समझें कि पैसे की बात हो रही है। वो आपसे दिल मांगता है आपका, और जो कुछ खुदा आपको देता है वो आपको देता है और उससे आपकी आजमाइश भी करता है। हालेलुया। पैदाइश 22वां बाब 1 से 18वीं आयत में खुदा ने इब्राहिम से कहा,
ऐ इब्राहिम, अपने बेटे को जो तुझे बहुत प्यारा है मेरे लिए सोख्तनी कुर्बानी कर दे। सोख्तनी कुर्बानी पता क्या होती है? वो मज़बा के ऊपर बैल को, बछड़े को, बर्रे को टोटे करके धो के रख दिया जाता है और उसके ऊपर फिर मसाले डाले जाते हैं, जैतून का तेल डाला जाता है और फिर उसको आग लगा दी जाती है। ये सोख्तनी कुर्बानी है। और खुदा ने किससे फरमाया? खुदा ने अपने नबी इब्राहिम से कहा कि तू जिसे सबसे ज्यादा प्यार करता अपने बेटे इसहाक को मूरिया के पहाड़ों पर लेकर आ, और जब तू वहां पर आएगा जिस पहाड़ पर मैं तुझे कहूंगा तू अपने बेटे को वहां पर कुर्बान कर दे। सोख्तनी कुर्बानी, टोटे करके इसके वहां पर रख, मज़बा बना और पत्थर से पत्थर मार, आग जला और इसको जलाकर वहां पर मेरे लिए कुर्बान कर। मैं देखना चाहता हूं तू मुझसे प्यार करता है या इसहाक से प्यार करता है। आज खुदावंद आप सबसे अपने कलाम के वसीला से एक सवाल पूछता है, मैंने तुझे औलाद दी, तूने मुझे क्या दिया? मैंने तुझे औलाद दी कि तू उसकी परवरिश करे मेरे कायदे कानून के मुताबिक, लेकिन तुमने अपनी औलाद को दुनियादार बनाया और मैंने कहा कि जमीन पर मेरी नस्ल को बढ़ा दो और तुमने शैतान वाली नस्ल को यहाँ पर पैदा कर दिया है। मैं तुमसे नाराज हूं और तुमसे बदला लूंगा। ये खादम 2 घंटे आपके पास होते हैं, हफ्ते बाद आते हैं, हफ्ते में एक मीटिंग करते हैं आपके पास, हफ्ते में 1-2 विजिट करते हैं, लेकिन आपके बच्चे हैं, आपके साथ रहते हैं। बच्चों के साथ खाने पीने का प्यार करें, बच्चों के साथ कपड़ों का प्यार करें। कलाम फरमाता है अपने बच्चे को छड़ी के साथ मार, मर नहीं जाएगा, सुधर जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपको पंचायत में ना बिठाएं, आपको थाने में ना लेकर जाएं, तो फिर कलाम मुकद्दस पर अमल करें। पहले घर के मालिक, घर का सरबराह, बीवी और मियाँ खुद बदलें। जब आप खुद सुबह सुबह दुआ करेंगे तो क्यों नहीं ये बच्चे आपके दुआ करेंगे? जिस घर में सुबह सुबह टीवी लगता है वहां बच्चे उठ के सुबह टीवी देखना शुरू कर देते हैं, और जिस घर में बच्चे सुबह सुबह दुआ करते हैं उस घर में बच्चे भी उठ के दुआ करते हैं। जब एक औरत सुबह उठती है सबसे पहले, और जब वो सुबह उठेगी सबसे पहले और वो दुआ करेगी, उसकी दुआ बच्चों के कानों में जाएगी और वो उठेंगे तो वो भी दुआ करेंगे। और अगर वो औरत सुबह सुबह गाने गाएगी, टीवी लगाएगी, बेहुदा गाने सुनेगी, तो जो बच्चे उठेंगे वो भी वही कुछ देखेंगे और उस घर में शैतान चलता फिरता नाचता हुआ नजर आएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हमारे घर में खुदा चलता फिरता नजर आए तो फिर उसके कलाम की ताबेदारी करें। हालेलुया। मियाँ और बीवी का क्या किरदार है? यूं ही नहीं खुदा ने हमें पैदा किया, बच्चे पैदा करो, बच्चों की शादियां करो, एक दूसरे को गाली गलौज करो, कत्ल करो और थानों में चले जाओ, एक दूसरे को मार डालो और दुश्मनियों में अपने आप को रखो। इसलिए पैदा नहीं किया खुदा ने। ये शैतान की बुरी रूहें आकर के ये सारे काम करती हैं। खुदा की किताब पढ़ के देख ले। खुदा ने आदम और हवा को पैदा किया और फरमाया बढ़ो, फलो, फूलो, जमीन को महकम और मामूर कर दो। जिस तरह मैंने तुम्हें बनाया अपने जलाल के लिए, तुम भी मेरे जलाल के लिए मेरी पाक नस्ल को जमीन पर पैदा करो। आज हमें क्या नजर आता है? छोटे छोटे बच्चे हैं, डेक लगा दो, वो डांस कर रहे हैं, उनको किसी ने कहा ही नहीं है, डांस करना शुरू कर दिया है। मजमे में कह दिया ना कोई बहनों में से दुआ करे, बहनों ने सर नहीं ऊपर उठा कि पादरी मुझे ना कह दे। इतनी कुरानी आजकल की बहन। क्या मैंने ठीक कहा? कहना पड़ता है ये बहन दुआ करे। इब्राहिम ने क्या किया? 100 साल की उम्र में खुदा ने एक औलाद दी, एक बच्चा दिया। वो कितना प्यार करता होगा। खुदा ने एक बार फरमाया, 2 बार फरमाया, ऐ इब्राहिम मैं तुझे औलाद दूंगा, तेरे सल्ब के अंदर से एक औलाद पैदा करूंगा और आसमान के सितारे जिनको तू गिन नहीं सकता मैं इसकी तरह उसकी नस्ल बढ़ा दूंगा। और अब खुदा ने एक बेटा दिया। अब इब्राहिम ना पल पल अपने बेटे की तरफ ही ध्यान किया हुआ, खुदा को भूल रहा। हालेलुया। खुदा को भूल रहा था, बेटा ले लिया, खुदा को भूल गया। कैसे हो सकता है? खुदा ने चेक किया, इब्राहिम अपने बेटे को लेकर मोरिया के पहाड़ पर आ जा, उसकी सोखनी कुर्बानी कर। क्या बात! सोचो, इब्राहिम ने अपनी बीवी से झूठ बोला कि नहीं बोला? तो जो करें, झूठ बोला। क्या झूठ बोला? खुदा ने फरमाया कि तू मोरिया के पहाड़ पर आकर कुर्बानी कर।
और पूरी बात नहीं बता रहा। खुदावन ने फरमाया अपने बेटे इसहाक की कुर्बानी कर, और अपनी बीवी को क्या बता रहा है? सिर्फ कुर्बानी कर। क्या यहाँ झूठ बोला कि नहीं बोला? नबी कहता है उसने झूठ बोला। नबी कहता वो मिस्र में गया, उसने झूठ बोला, उसने खुदा को नाचीज जाना। ब्रदर ब्रानम कहते हैं उसने गुनाह किया, अपनी बीवी से कहा तू मुझे अपना शौहर नहीं अपना भाई कहीं। गुनाह किया, खुदा को नाची जाना। कनान के अंदर काल पड़ गया है तो खुदा को भूल गया है। नबी ने गुनाह किया। हालेलुया। गुनाह किस तरह होता है? बस थोड़ी सी भूख प्यास आ जाए, देखो गुनाह कैसे होता है। आज वक्त है, गुनाह हो रहे हैं क्योंकि भूख है, अफलास है, कोरोना है, हर तरफ जिंदगी का रोना है और फिर गुनाह होता है। अब एलिया की तरह इंतजार करना पड़ेगा। आसमान बंद हो जाए, बंद हो गया, खुराक कहां से है? जानवर भूखे मर रहे हैं, खुद भी फिर भूखा मरेगा। खुदा सब कुछ मुहैया करता है। क्या उसने खुदा के कलाम पर शक किया? क्या वो अपने बेटे को लेकर वहां पर गया? वो अपने बेटे को लेकर मूरिया के पहाड़ों पर गया, उसके साथ नौकर भी थे। अगर वो अपनी बीवी को बताता कि मेरे खुदावन ने इस बेटे की कुर्बानी मांगी है, आप सब माएं बैठी इधर, क्या करती वो माँ? वो कहती नहीं, पहले मुझे कत्ल कर और फिर मेरे बच्चे को कत्ल करें। कैसा तेरा खुदा है? सारी उम्र मुझे बाँच रखा, वादा किया। खुदा ने एक बार तुझे कहा, तू 25 साल रोता रहा, 25 साल गवाहियां देता रहा, मेरा खुदा आसमान और जमीन का खुदावन यहोवा खुदा जो हर जगह मौजूद है, वो मुझे औलाद देगा, आसमान के सितारों के मालिक। अब वो कैसा खुदा? औलाद दी, बुढ़ापे में खुशी दी, और फिर अब मातम के लिए हमें कह रहा है। नबी ने झूठ बोला, उसने कहा मेरा खुदा कहता कि तू वहां पर आकर कुर्बानी कर। कहती मेरे लगते जिगर को साथ लेके जा रहा है तो ध्यान से, रास्ते में इसको डांटना नहीं, इसको मारी ना, और टाइम पे इसको खाना खिलाई। कहता हाँ तू परेशान मत हो, और दिल में कहता मैं इसी को तो कुर्बान करने जा रहा हूं। पहले भी मैंने तुझे बताया, तेरी वजह से मैंने एक और गुनाह किया, अब तुझे नहीं बताऊंगा। ये मर्द हजरात जरा गौर से सुनिएगा, ये बाप इब्राहिम ईमानदारों का बाप क्या कहता है। कुछ बातें होती हैं वो बीवियों को नहीं बतानी चाहिए। जब आप खुदा के लिए कुछ करते हो तो बीवियों से मत पूछें। कमाई आप करते हैं, तनख्वाह आपकी है, जब खुदा को देना होता तो बीवियों से पूछते हैं मर्द। यह मर्दों का सेवा नहीं है। जिसने दिया जब उसको देना है तो फिर बीवी से पूछना शुरू कर देते हैं। माफ करना, क्योंकि ये खुदा के कलाम की बड़ी गहरी बातें हैं, ताकि आपके घराने मजबूत हो। ये आने वाली नस्ल है ना, जो इनके अंदर आपकी खुदाई नजर आए कि आपका खुदा किस तरह चाहता है। जब हम क्यों मर जाते हैं बुजुर्ग, वो कहते हैं हम आपस में शादियां करें, हमारे मरने के बाद ये मिलते रहें, और जब हम यहाँ से मरकर चले जाएं तो हमारे मरने के बाद ये खुदा को याद रखें, शैतान के पैरों का दिए न जलाने शुरू कर दें। हमारा खुदा इसलिए नस्ल दर नस्ल अपनी गैरत और मोहब्बत का दर्ज देता है। हालेलुया। मुझे आज भी याद है, एक मियाँ बीवी था, उन्होंने कमेटी डाली और साथ उन्होंने कहा है खुदावन जब ये कमेटी निकलेगी, फर्ज करो 10,000 की कमेटी है तो खुदावन 5,013 खुदावन उनको वक्त पर पैसे मुहैया करने, वो कमेटी दे रहे। कमेटी निकली और एक पादरी उनके घर चर्च के लिए मीटिंग करवाने के लिए आता था, विजिट करता था, और वो आता रहा, वो कमेटी निकल आई और उन्होंने अपनी बीवी को इशारा किया। उस मर्द ने उसने इशारा किया जाओ वो पैसे लेकर आओ। दुआ हो गई, कलाम सुनाया गया, अब बैठे चाय पानी हो रहा है और वो खादम के साथ बातचीत कर रहे हैं, तो बैठे बैठे तो याद है उसने अपनी बीवी को इशारा किया जाओ उठो। बीवी गई और 5,000 रुपया लेकर आई और अपने मर्द को दिया। उसने कहा जी पास्टर जी ये खुदा का हदिया है, हमने कमेटी डाली थी 10,000 की और हमने वादा किया था खुदा के साथ कि आधी कमेटी हम खुदा को देंगे, ये आधा ये पैसे आपके हैं। अब उस पादरी ने क्या किया, लालच में पड़ गया, बेवकूफ इंसान, कहता वो बहुत अच्छे, वो भी पैसे लेके आओ।
उन पर भी बरकत डालते हैं, उन पर भी दुआ करते हैं। बरकत उनको मिल गई है। जब कमेटी मिली तो उनको बरकत मिल गई, क्योंकि उन्होंने आधी कमेटी ना अलहदा कर ली पहले ही और कहा खुदावंद ये तेरा है, उनको बरकत मिल गई। उस खादम ने कहा वो भी पैसे लाओ, और उसने बाइबल के ऊपर 10,000 रखा और दुआ की और बातें करता करता 10,000 को बाइबल में बंद कर दिया और बैग में डाल के बाइबल चुप करके निकल गया। और बीवी कहती रोको रोको, इशारे करिए, रोको इसे, शायद इंसान है, भूल गया, इसको रोको। लेकिन वो कह रहा चुप, ये क्या है, मर्द है, मर्द, कह रहा चुप। वो कह रही जाओ, खुदा के लिए यही तो पैसे हैं जो खुदा का हिस्सा था, हमने दे दिया है, लेकिन अब ये बच्चों के हैं, हमने बड़े काम करने हैं, खुदा जानता है हमने किस तरह ये कमेटी डाली है। वो कहता खामोश, आज के बाद ये खादम इधर आए या ना आए, तुमने इसको पैसे पूछे, मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। ऐसे होते हैं मर्द। क्या उसको पैसे नहीं थे चाहिए? उसने कहा ले जा, मैंने 10 का आधा दिया था खुदा को, अब 10 ही खुदा को दे दिया है, तो खुदा उसको कितना देगा? दिया किसने? याद रखना, ये सच्ची गवाही है, यूहन्नाबाद की गवाही है। और वो मियां बीवी उस वक्त बड़े परेशान रहे, रोते रहे, और उनको खुदा ने इतना ब्लेस किया। एक कारोबार मिला, पेंचर की दुकान, पेट्रोल पंप पर एक और दुकान बना ली, एक और जगह पर, और अब वो सिर्फ विजिट करता, सामान मुहैया करता और ठेके बढ़ाता जा रहा है, और उसको बरकत पर बरकत मिलती जा रही है। और वो खादम जिसने कहा सारी कमेटी पर दुआ करेंगे, वो आज भी किराए पर बैठा हुआ है। हालेलुया। खुदा कोई मजाक नहीं है। अगर आप खुदा को कुछ दें तो खुदा उसका बदला न दे, हो ही नहीं सकता। मर्द बने, ये मर्द का किरदार है, ये है हकीकी मसीही मर्द, और खुदावन ने भी उसे वो मर्तबा दिया। अब सुना है वो दुबई बैठा है, और उसके जो यहाँ पर लोग हैं, ठेके चल रहे हैं, वो उसके घर पैसे पहुंचाते हैं। हालेलुया, ये गवाही सच्ची है। मैं आपसे दया की मांगने के लिए बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ मर्द का किरदार बयान कर रहा हूँ कि हर मर्द अपने घर में बादशाह है, और पहले मर्द को ठीक होना चाहिए, फिर बीवी ठीक होगी, क्योंकि बीवी मर्द के अंदर से निकली है। अगर मर्द नहीं ठीक तो बीवी नहीं ठीक हो सकती। जो मर्द अपनी बीवी से हर बात पूछ के करता है, वो मर्द नहीं ठीक। क्योंकि पंजाबी की एक मिसाल है, मर्दा दे बदे अगे कदम कभी पीछे नहीं हटते, और खुदा उसमें फतह देता है। उस घर में बरकत भी तब आती है जब मर्द दुआ करके काम शुरू करता है, और औरत कहती है आमीन, खुदा तेरे साथ हो। जब औरत से पूछेंगे तो वो कहेगी चल रहने दे, अगले महीने कर ली, चल 2 महीने बाद कर लांगे, फिर कुछ नहीं होता। अपने आप को संभालना पड़ता है। हालेलुया। इब्राहिम ने क्या किया? क्या अपने बेटे को कुर्बान किया? अपने बेटे को कुर्बान कर दिया। वो अपने बेटे को ले गया, और जब पहाड़ शुरू हुए, उसने अपने नौकरों से कहा तुम यहीं पर ठहरो, मैं और बेटा कुर्बानी करके वापस आते हैं। अब उसने बेटे के कंधे पर लकड़ियां रखी, हाथ में छुरी पकड़ी है, हाथ में पत्थर है, आग जल रही है। थोड़ा सा चलते जा रहे हैं चढ़ाई पर, थोड़ा सा चढ़ाई पर चढ़ते जा रहे हैं, और इस आग ने लकड़ियां अपने ऊपर रखी हैं। क्या आपको यीशु मसीह नजर आया? हालेलुया। क्या आपको यीशु मसीह नजर आया? इस आग के ऊपर लकड़ियां हैं, कुर्बान होने के लिए जा रहा है। इब्राहिम का बेटा कुर्बान होने के लिए जा रहा है, और वो कुर्बान ना हुआ, बल्कि इब्राहिम का बेटा मसीह यीशु, जिससे कौमों को मिरास मिली है, वो कुर्बान हुआ। वो भी अपनी लकड़ियां अपने ऊपर रखकर उन लकड़ियों के ऊपर जलने के लिए जा रहा था। कभी गिरता था, संभलता था। इसलिए वहां पर रास्ते में बेटे ने पूछा, है बाप? इब्राहिम ने कहा जी बेटा मैं हाजिर हूं। बाप लकड़ियां भी हैं, और छुरी भी है, आग भी है, बर्रा नहीं है, कुर्बान किसे करना है? वो दिल में कहता है तू ही मेरे बेटे बर्रा है, आज तुझे कुर्बान करना है। क्या आपकी जिंदगी में कभी ऐसा वक्त आया आप कहेंगे ये खादम कैसा है,
ये तो मेरे बच्चों का हिस्सा है, ये तो इसका हिस्सा है, और ये खादम मुझे ये बातें सिखा के जा रहा है। देखें, ऐसे नहीं इब्राहिम को कौमों कबीलों का बाप कहा गया है, क्योंकि बापों का बाप उसको आजमाइश कर रहा है, आजमाइश के अंदर से गुजार रहा है। आज आप अपने बच्चों को खुद अपने कंट्रोल में रखें। खुदा क्या है, कलाम क्या है, ये ज़बूरों की किताब क्या है, ये कलाम है। कोई बच्चा इसको बगैर हाथ धोए हाथ ना लगाए, इसकी इज्जत आपने करनी है और फिर आपने बच्चों को सिखानी है। जब आप भी करेंगे, बच्चा रो रहा है, मैंने कलाम पढ़ा दिया, आपने पकड़ा दिया, उसने ऐसे किया और ऐसे करके थवा फाड़ दिया, तो बरकत नहीं आपको मिलेगी। याद रखना, आपको लानत मिलेगी, क्योंकि आप खुदा की बेहुरमती कर रहे हैं छोटे से बच्चे से। और उस वक्त बच्चा जब ऐसा करता है तो उसके अंदर इब्लीस की बुरी रूहें आकर ऐसे काम करती हैं। इसलिए जितनी भी बहनें हैं ना, नेक्स्ट टाइम याद रखना, मैंने बड़ा बर्दाश्त किया है, मीटिंग में बैठ के बच्चों को कोई दूध ना पिलाए। याद रखना, जब बच्चा दूध मांगे या बच्चे को बाहर ले जाओ या बच्चे को छोड़ दो, क्योंकि जब कहते हैं सब खड़े हो तो बहनें बैठ के दूध पिला रही होती हैं। इस तरह दोबारा खुदावंद की इबादत में ऐसा ना करना, क्योंकि जितना बच्चा है उतना ही आप बराबर है खुदा की नजर में। ये आपने अभी से जिंदगी में ये सारा दर्द रखना है। क्या मेरी बात समझे आप? क्योंकि मैं बड़ी देर से बर्दाश्त कर रहा था, लेकिन मेरे दीदो, मैं यहाँ खड़ा हूँ सिखाने के लिए, और अगर मैं नहीं सिखाऊंगा तो मैं मुजरिम हूँ खुदा का और आपका, जो आप मुझे सुनने के लिए, यानी खुदा के कलाम को सुनने के लिए मुझे बुलाते हैं। हालेलुया। मेरे दीदो, नबी ने अपनी बीवी से झूठ बोला कि मैं जा रहा हूं कुर्बानी करने, और कुर्बानी अपने बेटे की करनी थी। देखें खुदा की मोहब्बत क्या मायने रखती है। ये घर का सरबराह है और इसकी बीवी इसको क्या कहती है? खुदावन। क्या आपकी बीवी आपको खुदावन कहती है? हमारी बीवी तुम्हारे नाम लेती हैं। वो कह रही है इब्राहिम इब्राहिम, वो तो नहीं ऐसे कहती, वो कहती है मेरी खुदावन। ये मियाँ बीवी है, मसीही मियाँ बीवी, खुदा का खानदान, ये खानदान। हालेलुया। आदम ने अपनी बीवी का नाम हवा रखा था, और आज भी मर्द अपनी बीवियों के नाम रखते हैं प्यार से। बीवियां नहीं अपने मर्दों के नाम रखती। कलाम उल्टा ना करें, कलाम के अंदर अंदर रहे, बड़ी बरकत मिलेगी। हालेलुया। रखे होते हैं ना बड़े बड़े भाइयों ने अपनी बीवियों के नाम, कलाम ऐसे कहता है। इसलिए जब कोई मर्द इस तरह करता है तो उस औरत को इज्जत करनी चाहिए अपने मर्द की। अगर वो ऐसे नहीं करती तो मेरे अजीजों याद रखें, वो अपने मर्द को बेइज्जत करती है, अपने मर्द को नहीं, खुदावंद यीशु को बेइज्जत करती है। कितनी औरतें जो अपने मियाँ के साथ ये इस हफ्ते में लड़ाई लड़ी हुई है थोड़ी बहुत, आज इस कलाम से सब खुदावंद से माफी मांग। अगर मर्दों से कोई गलती खता हुई है तो वो भी माफी मांग। लेकिन आज हमारे लोग क्या करते हैं, चर्च जाते हैं किसी चीज के लिए, किसी चीज को पाने के लिए। बेटी की शादी नहीं हो रही, चर्च जा रहे हैं, दुआ करते जाते हैं मेरी बेटी की शादी हो जाए, अच्छा रिश्ता मिल जाए। लोग जाते हैं मेरा ये काम बन जाए, मेरा घर नहीं बन रहा, मेरा घर बन जाए। लोग खुदा से सिर्फ मतलब के लिए जाते हैं खुदा के पास। हम यहाँ पर किस लिए आते हैं? हमें कोई मतलब नहीं है। हालेलुया। हमें अजीजों कोई यहाँ मतलब नहीं है। हम आप सब लोगों के पास खुदावंद का कलाम लेकर आते हैं, और खुदावंद आप भाइयों के दिलों में डालता है। आप बुलाते हैं तो हम आते हैं। अगर आप 6 महीने नहीं बुलाएंगे, 6 महीने नहीं आएंगे। आपको खुद फोन नहीं करूंगा जी मैंने यहाँ पर मीटिंग करनी है, ऐसे कभी भी नहीं होगा। हम दुआ करेंगे खुदावंद जहाँ तेरी मर्जी हो हम वहां पर जाए। उसकी मर्जी जानते हुए हम ये ऐसा करते हैं, और अगर हम ऐसा नहीं करते तो फिर हम बहुत दूर हैं। हालेलुया। कलाम फरमाता है हम जिए या मरे सिर्फ खुदावंद के। आमीन। अब समसून की मिसाल याद आपको, कज़ा 16 बाब पहली से तीसरी आयत। समसून की पैदाइश से पहले खुदा ने उसके माँ बाप को फरमाया था कि ये ना मैं पिए, ना शराब पिए, ना कोई भी ऐसे काम करे, और ना इसके बाल काटना। अब समसून पहली से तीसरी आयत, कज़ा 16 बाब
फिर शमसून गजा को गया, वहां उसने कसबी देखी और उसके पास गया। क्या किया शमसून ने? अब ये खुदा का काजी है, जिसे जज बोलते हैं। खुदा ने से चुना है, खुदा ने उसको शरीयत दी है इसके माँ बाप के वसीला से, और ये अब इसके अंदर है कि मैंने ये करना ये नहीं करना। अब इसने डायरेक्ट ही गलत काम किया। कसबी के पास गया, एक गंदी औरत के पास चला गया, बुरी औरत जो अपना जिस्म बेचती है उसके पास चला गया। अब खुदा तो अपने कलाम को देख रहा है। अब इसके बाल है लंबे, तो खुदावन ने अपना अहद जो था, अपनी बरकत कहाँ रखी थी? इसके बालों के अंदर। इसके बालों के अंदर थी सारी ताकत और बरकत। अब ये कसबी के पास गया, खुदा ने कसबी को नहीं देखा। बाइबल पढ़ के देख लीजिए, इक़्तिसाद 16वां बाब, वहां फलस्तीन का सारा मुल्क क्या कहता है? ये इस इलाके में आया गजा के अंदर, और सारे गजा को घेर लो। सारे गजा की हदूद को घेर लिया गया कि जब ये इस औरत के पास से निकलेगा, रास्ते में इसको कत्ल कर देना। अब खुदा उसके साथ है, अब वो ज़नाकारी कर रहा है, अब वो गलत काम कर रहा है, खुदा उसके साथ है। खुदा उसके साथ क्यों है? क्योंकि उसके ने लंबे लंबे बाल रखे हुए हैं, उसने अभी बाल नहीं काटे। खुदा अपने कलाम का पाबंद है, खुदा अपने कलाम का तर्जुमान है। और जब वो वहां से निकला रात को ही, खुदा ने उसे उठाया, चल उठ। और जो मेन गेट था, जिस तरह DHA का मेन गेट है, कितने कितने बड़े गेट होते हैं, ये वाला जो गेट, ये 1 नंबर गेट पे है, काले रंग के 2 गेट ऐसे खुलते हैं। एक बंदा इन दोनों पल्लों को उठा सकता है? पढ़ के देख लेना, इक़्तिसाद 16वां बाब। खुदा के इस नजीर ने, शमसून काजी ने, रात को वहां से निकला, और वो तो इधर उधर बैठे इंतजार कर रहे थे, और उसके बालों के अंदर खुदावंद पाक रूह की ताकत थी। और वो ऐसा बॉडी बिल्डर नहीं था जैसे फिल्मों में आप देखते हैं, ऐसा नहीं था। खुदा उसके अंदर रहता था। और जब वो वहां पर गया, तो उसने गजा के मेन गेट को, जो पीतल के बैंडरों से मंडे हुए थे, पीतल का बना हुआ था, 5 टन वजन था। ब्रदर बनम कहते हैं उसका 5 टन वजन था। और उसने वो दोनों खाड़ कर अपने सर पर रखे कंधों पर, और हबरून के पहाड़ पर चढ़ गया। किस पहाड़ पर? हबरून के पहाड़ पर चढ़कर वहां पर ऊपर फेंक आया, आओ नीचे लेके जाओ। खुदा के लोग खुदा के लिए इस तरह अजीब काम करते हैं। अब उसकी ताकत किसमें थी? बालों में थी। औरत की ताकत किसमें है? औरत की ताकत किसमें है? औरत के बालों में। क्योंकि पैदाइश की किताब जब पढ़ते हैं तो वहां पर खुदा ने औरत को नंगा बनाया है। औरत के पास क्या है? सिर्फ बाल है। अब इतने लंबे औरत के बाल थे, इतने लंबे बाल थे, वो बालों से अपना जिस्म ढांप रही है। याद रखना, अपने ज़हन में सोचो, ख्याल करो, कितने लंबे बाल होंगे। तो उन बालों से औरत का जिस्म ढांपा जाता था, इतने बाल थे। आज औरत के बाल कहाँ गए? आज औरत बाल काटती है, तो जो औरत बाल काटती है वो तो गंजी है। कलाम फरमाता वो गंजी औरत है, उसके पास कोई बरकत नहीं है। क्या मैंने ठीक कहा? क्योंकि शमसून के जब बाल कट गए, उससे आगे सुवरक की वादी में जब वो गया, तो वहां पर उसे एक दिलाला नाम से इश्क हो गया। उसको देख के उसने पसंद किया, और उसी औरत की वजह से उसके वो मुकद्दस बाल जो 7 लट्टें थी वो कट गई, और वो एक आम इंसान रह गया। औरत, याद रखे बहने बेटियां, जो औरत अपने बाल काटती है उसकी बरकत जिंदगी की खत्म। जो औरत जेवर सोना चांदी पहनती है वो खुदा के खिलाफ काम करती है। क्या आप जानते हैं इस बात को? बहने बेटियां, क्या कभी ये कलाम में से देखा या पढ़ा या सुना? ये मसीह के कलाम के अंदर का पैगाम है। ये मैं पास्टर, ये मेरी बात नहीं है, ये खुदावंद का कलाम। खुदावंद खुदा यूं फरमाते हैं,
हालेलुया। आज खुदावंद के कलाम को और उसके तरीकेकार को और मसीहत को बिगाड़ दिया गया है। मर्द सिगरेट पी रहे हैं, बूटी पी रहे हैं, चर्च पी रहे हैं और फिर भाग भाग चर्च जा रहे हैं, चर्च जाई जा रहे हैं, चर्च जाकर वहां पर माइक पकड़कर ठीक ठाक नारेबाजी करते हैं, मैं बड़ा मसीह हूँ। निकलते हैं, गाली गलौज करते हैं, फिर शराबे पी रहे हैं, फिर बूटी पी रहे हैं, फिर चर्च पी रहे हैं, फिर कहते हैं मैं बहुत मसीह हूँ। पादरी नहीं कुछ कह रहे, पादरी नहीं मना कर रहे। क्यों नहीं मना कर रहे? क्यों नहीं मना कर रहे? अगर वो मना करेंगे तो क्या होगा? उनकी कलीसिया भाग जाएगी। तो कलीसिया तो ये खुदावंद की है, हमने तो सिर्फ बताना है। आप मेरी कलीसिया नहीं हो, आप खुदावंद यीशु मसीह की दुल्हन हो, उसकी कलीसिया हो मेरे अजीजों। मैं तो उसका पैगाम आप तक पहुंचा रहा हूं, क्योंकि पहले भाइयों के लिए पैगाम लेकर आया था, आज 7 भाइयों और बहनों खानदानों का पैगाम लेकर आया। हालेलुया। तो हर बार पैगाम मुख्तलिफ होता रहेगा। समसून जब बाल कटवा गया औरत के पीछे लगकर, तो क्या हुआ? उसकी बरकत चली गई। और आज जो औरत बाल काटती है उस घर में, उसकी जिंदगी में कोई बरकत नहीं है, वो गंजी है। और कलाम फरमाता है ऐसी औरत जब दुआ करती है तो उसके लिए शर्म की बात नहीं है। अगर एक औरत अपने बाल काटती है तो उसके शौहर को उसे तलाक दे देना चाहिए। अब आप कहेंगे ये कहां लिखा है? हालेलुया, ये भेद है, अभी खुलेगा। ठीक हो गया। पहला कुरिन्थियों 11 आयत। बस मैं तुम्हें आगाह करना चाहता हूं कि हर मर्द का सर मसीह और औरत का सर मर्द और मसीह का सर खुदा है। आप बताओ जो मैंने बात कही ठीक है या नहीं? जो औरत अपने बाल काटती है और औरत का मर्द कौन है? उसका सर। वो अपने बाल काट के अपने मियाँ को बेइज्जत करती है, तो वो बंदा खुश रहेगा जब उसकी औरत बाल काट के उसको बेइज्जत करेगी। तो जब एक औरत ने एक मर्द की बेइज्जती की तो मर्द का सर यीशु है, मसीह है, तो फिर मसीह की बेइज्जती ना हुई कि नहीं हुई? तो जब मसीह की बेइज्जती हुई तो मसीह के अंदर खुदा रहता था, तो फिर मसीह का सर खुदा है। कलाम फरमाता उसका सर खुदा है। तो फिर खुदा की बेइज्जती एक औरत ने बाल काट के की कि नहीं की? हाँ या ना? तो जो औरत बाल काट के खुदावंद यीशु को और खुदा बाप को बेइज्जत करती है, उस औरत के साथ रहना मुनासिब है? तो यहाँ तो बाल काट के औरतें मनाद बनी हैं, बाल काटे हैं, लंबे लंबे नेल बनाए हैं, नीले हैं, काले हैं, पीले हैं, और नीली ये आंखें बनाई हैं, पीली ये लिपस्टिक लगाई है, और वो कलाम सुना रही हैं। कौन है इनके अंदर? इज़बल की रूह है। हालेलुया। आपको कैसे पता चलेगा? जब हम आपको बताएंगे। जब तक नहीं बताएंगे तो आपके दिल में यही बात आएगी, वो पास्टर की बेटी, वो पास्टर की बीवी, वो पास्टर ये वाली, वो अमेरिका की पादरी ये वाली, वो तो स्कर्ट पहनती है, वो तो ये वाले लिबास पहनती है, बाल काटती है और झूमर पहनती है, कांटे पहनती है और नेल पेंट लगाती है, वो कलाम सुनाती है, मौजदे करती है। उसके अंदर इज़बल की रूह है, उसके अंदर खुदा की रूह नहीं है। खुदा की रूह होगा उसके अंदर तो वो घर से बाहर नहीं जाएगी। याद रखें, ना किसी औरत ने बाइबल में किसी को बपतिस्मा दिया है, ना किसी औरत ने कोई मौजदा किया है, और ना ही किसी औरत ने किसी पर हाथ रखकर दुआ की है, और ना ही कोई कलीसिया कायम की है। शरीयत फरमाती है कम से कम 2 गवाहियां, 4 बातें की हैं, 2 ही कोई बता दे, वो हमारा उस्ताद। और अगर नहीं तो कोई अगर सुन रहा है तो वो कलाम को ठीक तौर पर पढ़े, और जहां पर मर्दों और औरतों का किरदार आए तो वो इन हवालों को याद रखे। पहला कुरिन्थियों 11वां बाब। हालेलुया। हम आगे बढ़ेंगे। पहला तीमुथियुस 2 बाब 8वीं आयत से। इसी तरह औरतें हयादार लिबास से शर्म और परहेजगारी के साथ अपने आप को संवारे, ना के बाल गूंदने में और सोने और मोतियों और कीमती पोशाक से। कौन कहता है ये? मुकद्दस पौलुस रसूल खुदावंद का पैगाम सारी दुनिया को सुना रहा है कि जो औरत अपने आप को मसीह कहती है वो कीमती पोशाक ना पहने, 20,000 का लहंगा साड़ी ना पहने। 20,000 के 20 सूट आ जाएंगे,
اور وہ 3-4 سال چل سکتے ہیں. اور لہنگا جب آپ لیں گی معاف کیجیے گا ایک بار ہی پہنتی ہیں لڑکیوں, اس کے بعد نہیں پہنتی. اور اس سے بڑا خرچہ اور کیا ہوگا ماں باپ کو بیوقوف بنانے کا. اور مرد ایک پینٹ کوٹ بنا لیں گے 3000 کے, 15 سال چلاتے ہیں اس پینٹ کوٹ کو. کیا میں نے ٹھیک کہا بھائیو؟ ایسے ہی ہے. بیوی کہا کہ میں نے وہاں جانا ہی نہیں ہے, کیوں؟ میرا سوٹ نہیں ہے. تو بندہ کہتا ہوں جیڑی لباری جو بڑی پڑی ہے, وہ میں ادھر پہن کے گئی تھی پہلے بھی, اس کی بڑی بہن کی شادی پر پہن کے گئی تھی, اب میں نے جوتی بھی نہیں لینی ہے, کپڑے بھی نہیں لینے ہیں. اب بتاؤ یہ کلام کے خلاف ہے کہ نہیں ہے؟ پھر بندے کو بھی چاہیے نئی جوتی لے, بندے کو بھی چاہیے کہ وہ بھی جوتی بھی لے اور نیا ڈریس بھی لے. لیکن بندہ کہتا ہے تے میرے کپڑے بھی تیار کر دینا. کون سے کروں؟ چل وہ میری شرٹ دھلی ہے نا, وہ پینٹ کوٹ میں دوبارہ ادھر وہ پہن جاؤں گا. بندوں کو نہیں شرم ہوتی ادھر کہ یار ادھر سارے دیکھیں گے میں نے وہی پینٹ کوٹ اپنی شادی پہ, وہی اس چاچے کے بیٹے کی شادی پہ, وہی مامے کے بیٹے کی شادی پہ, اور وہی سسرال پہن کے جا رہا ہوں. یہ مرد کا کردار ہے, مرد گھر کو چلا رہا ہے. خدا ان سب مردوں کو برکت دے جو اس طرح کا دارا کر. ہاللیلویا. اب دیکھیں کلام فرماتا ہے پہلا تموت کے 2 باب کے اندر کہ عورت سونے چاندی موتی ہیرے یہ نہ پہنے, اور اپنے بال, یہ جو عورتیں بناتی ہیں نا, فیشن کرتی ہیں, بال گوندنا, جیسے آٹا گوندنا کتنی دیر لگتی ہے, عورتوں کو پسینہ تک آ جاتا ہے اچھی طرح جب آٹا گوندتے ہیں. اور جو فیشن کرتی ہیں نا وہ بھی جب یہ سٹائل بناتی ہے نا, سیدھے بالوں کو کرل کرتی ہیں اور کرلی بالوں کو سیدھا کرتی ہیں, بڑا ٹائم لگاتی ہیں. تو کیا کلام فرماتا ہے؟ یہ مت کرو. اور سونے سے خدا کا کلام منع کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ آمین. آج بے شک بہنیں شاید میرے خلاف ہوئی ہوں, لیکن معاف کریے گا, میں آپ کی روحوں کو بچانے کے لیے یہ باتیں کر رہا ہوں. کیا میری بات سمجھے آپ؟ میں صرف خدا کا کلام پڑھ کے سنا رہا ہوں. آپ کے بھائی بچے بہت سارے پڑھے لکھے ہیں, میں حوالہ بولتا ہوں بعد میں بات کرتا ہوں. آپ سن سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں, یہ بات لکھی ہے یا نہیں لکھی. پھر یہی بات پہلا پتر 3 باب کے اندر بھی 3-4 آیت کے اندر بھی لکھی ہے کہ وہاں پر بھی بال گوندنا, سر گوندنا لکھا ہے, اور سونے اور موتی اور ہیرے, پوشاک, قیمتی لباس یہ مت پہنے عورتیں. عورتیں شرم حیا میں رہیں. اور آج کل جو عورتیں لڑکیاں اپنی بیٹیوں کو ٹائٹس بناتی ہیں, یہ بے شرمی کا لباس ہے. کلام فرماتا ہے عورت کا جسم نیچے سے نظر نہ آئے, یہ شرم کی بات ہے, یہ عزت کی بات ہے. آج آپ دیکھیں شادیوں میں کیا ہوتا ہے, جس عورت کے نیچے سے کپڑے نظر آتے ہیں اور وہ سب کو دکھاتی ہے, وہ ان کو گناہ کروانے پر اکساتی ہے. اور وہ مرد نہیں جو اس پر بری نظر ڈالیں گی, وہ عورت آگے جا کر پکڑی جائے گی بےہودہ لباس پہننے کی وجہ سے. ہاللیلویا. اگر آپ ایک مرد ہیں اور آپ اپنی بیوی کو فیشن کرنے, بال کاٹنے سے روکتے ہیں, تو آپ واقعی ایک حقیقی مرد ہیں. کلام فرماتا ہے اگر عورت ایک گردن ہے, مرد کیا ہے, سر ہے نا, تو سر کے نیچے گردن ہوگی نا. گردن آپ کے سر کو موڑتی ہے یا سر گردن کو موڑتا ہے؟ گردن موڑتی ہے, پھر کام ٹھیک نہیں ہے. سر موڑتا ہے, سر مڑتا ہے, گردن نہیں موڑتی. اگر عورت گردن ہے اور آپ کو موڑتی ہے تو یہ تضاد ہے, یہ الٹ کام ہے. مرد سر, اور مرد کا سر مسیح, مسیح کا سر خدا. خدا مسیح میں ہو کر دنیا کو موڑتا ہے, اور مسیح مرد کے آ کر اس کی بیوی کو موڑتا ہے, اور بیوی کلیسیا کو بچانا چاہتا ہے. ہاللیلویا. خدا اس طرح کام کرتا ہے, اور آپ بھی اپنے گھروں میں کس طرح کام کریں, اسی طرح کام کریں. پہلے وقتوں میں مرد جو کہتے تھے وہی ہوتا تھا, وہی ہوگا. لیکن آج کا مرد ڈرتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے. مرد کیا ہڈیاں پکا رہے ہیں. آج چھٹی ہے تو بیوی کہتے ہیں اچھا کیا بناؤں, چلو کوئی بات نہیں میں بنا دیتا ہوں. بیوی کہتی ہاں میرا سر درد ہو رہا ہے, تو منڈا اور کی ڈبل روٹی بنا دو پلیز. مرد بنا رہے ہیں, تو یہ بات تو ٹھیک نہیں. یہ ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں, بہن جی بیٹھے ہیں, ان سے پوچھو ان کے کتنے بچے ہو گئے, کیا انہوں نے کام نہیں کیے؟ کیا ہماری مائیں کام نہیں تھی کرتی؟ ہم خود آگے آ کے اپنے آپ کو بگاڑ رہے ہیں,
खुद दलील कर रहे हैं अपने आप को। कलाम फरमाता है अपने आप को संभालो। हालेलुया। ये कलीसिया को बचाने की बातें हो रही हैं, क्योंकि कलीसिया में घराने हैं और घराने खुदावंद का बदन है। तब आप इस तरह बनेंगे। इस तरह मर्द औरत को मोड़े, ना कि औरत मर्द को मोड़े। आजकल की औरतें शादी हो जाए तो जल्दी औलाद नहीं पैदा करती और बाजार से तोते रख लेंगी और बाजार से वो छोटे छोटे कुत्ते मिलते हैं उनको उठा के पसंद करेंगी, उनको पालना पसंद करेंगी, तोतों को पालना पसंद करेंगी, अपने मर्द की औलाद पालना पसंद नहीं करती। क्या मैंने ठीक कहा? ये गुनाह है, खुदा माफ नहीं करेगा। आज इंसान डरता है, आज का बुज़दिल मर्द डरता है कि अगर मैं अपनी बीवी को कहूंगा कि तू सोना चांदी ना पहन, तू बाल ना काट, तू इस तरह के कपड़े ना पहन, वो मुझे छोड़ के चली जाएगी, मैं अकेला रह जाऊंगा। बस इसी तरह डरते हैं हम मर्द। हालेलुया। लेकिन जब बाप देखता है कि मेरा बेटा गलत काम करता है, कहता ओए तू मर्द है, मेरे से सबक सीख, मैंने आज तक तेरी माँ से ऐसे काम करवाए हैं या मैंने किए, तू ऐसे क्यों करता है? ये बेइज्जती है हमारे घराने की, तूने ये काम किया कर, तेरी बीवी करे। तब घर में परेशानी आती, तब लड़ाई होती। बीवी कहती तू अपने बाप की बात मानता है, मैं छोड़ के जा रही हूँ, तू लहरा घर ले, मैं तेरे माँ बाप के साथ नहीं रहूंगी, क्योंकि वो तो मुझे खुदा की बातें सिखाते हैं और मैंने तो शैतान की बातें करनी, शैतान जैसे काम करना। हालेलुया। अगर एक मर्द अपनी बीवी को वो सब कुछ करने देता तो वो उससे वो दोहरा गुनाह करवाता है। जिस तरह मसीह ने फरमाया कि मर्द अपनी बीवी को एक सबब से छोड़ सकता है, वो है ज़नाकारी। अगर आपकी बीवी आपको छोड़कर कि दूसरे मर्द के पास जाती है, आप उसे छोड़ दें, लेकिन दूसरी शादी नहीं कर सकते। अगली बार ना दूसरी शादी करे, ना वो दूसरी शादी करे, छोड़ दें, फिर वापस आ जाए। हालेलुया। क्या बरकत मिली या मेरी मुखालफत? बरकत या मुखालफत? हालेलुया। खुदावंद आपको बरकत। अगर कोई मर्द अपनी बीवी को सिगरेट पीने दे, छोटी निकरें पहनने दे, टाइट्स पहनने दे, इसकी इजाजत दे, नबी कहता है कि वो मेरे नजदीक कम इज्जत है उस मर्द की। वो नाम मर्द है जो अपनी बीवी से इस तरह के फैशन करवाता है। औरत हर काम में अपनी मर्जी करती है। इससे यह भी जाहिर होता है कि घर में हाकम कौन है। जिस घर में औरत अपनी मर्जी चलाती है उस घर में पता चल जाता है कि इस घर में सरबराह कौन है। और कलाम क्या पढ़ा था कि हर मर्द अपने घर में हुकूमत करे। कौन फरमाता है? खुदा का कलाम फरमाता है कि हर मर्द, जितने मर्द हजरात हैं वो मर्द बने और कलाम के कलाम को अपनी जिंदगी का अव्वल दर्जा दें। आपको पता है शैतान मर्द को औरत को नंगा करता है, दुनिया के सामने तमाशा करवाता है। हालेलुया। खुदावंद की किताब में जब गुनाह हुआ तो गुनाह किसने किया? हवा ने गुनाह किया। तो गुनाह करने के बाद वो आदम छुप गया लुंगियां बना के अंजीर के पत्तों की। तो खुदावंद ने इबादत कहता है खुदावंद मैं नंगा हूं, कह रहा ना खुदावंद मैं नंगा हूं। आज भी शैतान जब गुनाह करवाता है ना आपसे, तो तब आपको नंगा करता है। पहले आप नंगे नहीं होते दुनिया के सामने, फिर आपको हर तरह की बातें सुननी पड़ती है ना, क्योंकि आप दुनिया के सामने खुल के आ गए। आपने क्या गुनाह किया? जब तक आपने गुनाह नहीं किया तो सारे आपकी इज्जत करेंगे, चाचा जी, अंकल जी, बाबू जी, माँ जी। और जब आपसे गुनाह शैतान करवाएगा फिर आपकी कोई इज्जत नहीं करेगा, तो आप हो गए ना नंगे। यहाँ पर भी गरासीनियों के इलाका में लूका 8वां बाब 26वीं आयत से 39वीं आयत में एक शख्स गरासीनियों के इलाका में था और वो शख्स नंगा रहता था। कहाँ रहता था नंगा? कब्रिस्तान में नंगा रहता था। अपने आप को पत्थर मार मार के लहू लहान करता था। जो उधर से गुजरता उसे पत्थर मारता था। उसको बहुत बार जंजीरों से संगलों के साथ बांधा गया था, लेकिन वो तोड़ देता था और वो उधर जाकर फिर नंगा हो जाता था। उसके अंदर शैतान का, इब्लीस का पूरा लश्कर था और उसने उसको नंगा किया हुआ था।
اور دیکھیں مسیح یسوع جب پانی پر چل کر گئے تو اس علاقے میں گئے، وہاں پر جب مسیح یسوع نے جا کر وہاں پر منادی کی تو پہلے ہی وہ بندہ سامنے آ گیا. اب وہ ننگا ہے، یسوع اس کے 12 شاگرد اس کے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں. آسمان اور زمین، مقدسین کا بادشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ جا رہا ہے. آسمان کا شہزادہ زمین پر تشریف فرما رہا ہے، اور وہ ننگا، اس کے اندر ابلیس کا لشکر ہے. اور ابلیس کی مکاری چیک کریں، وہ بھاگا آ رہا ہے یسوع مسیح کی طرف، اور آتے سار یسوع مسیح کے قدموں میں گر کر کہتا ہے اے خدا کے بیٹے، وقت سے پہلے ہمیں عذاب میں نہ ڈال. اب دیکھ اس کو پتا کہ مکاشفہ کے کتاب میں ہمارا تو نہیں وقت لکھا ہے، تبھی تو وہ مکاشفہ والا وقت نہیں آیا، تو ہمیں تو پہلے مارنا. تو میرے عزیزو وہاں پر کیا ہوگا؟ خداوند نے بدروحوں کی بات مانی، انہوں نے کہا ہمیں سوروں میں بھیج دے. خداوند نے ان کو حکم کیا سوروں میں چلے جاؤ، وہ سوروں میں چلی گئی. ان کو پتا تھا یہ اگر حکم کرتا تو ہم جل جاتی، ابھی ختم ہو جاتی، لیکن ابھی ہمارا وقت نہیں آیا. تو وہ ننگا تھا نا، اس کے بعد اس کو کپڑے پہنائے گئے، کیونکہ اسرائیلی جو نا ایک وقت میں 6 کپڑے پہنتے تھے. تو کسی نے نیچے سے بنیان اتار دی، کسی نے اوپر سے جبہ اتار دیا، کسی نے کچھ اتار دیا، اور اس کو پورا سوٹ تیار کر کے اس کو پہنایا. اور جب سارا علاقہ آیا تو وہ یسوع کے قدموں میں بیٹھا ہے، شکر گزاری خداوند کی کر رہا ہے کہ شیطان نے مجھے ننگا کیا تھا اور تو نے مجھے سمیٹ لیا ہے. ہاللیلویہ. یاد رکھنا، جو بیٹیاں اور بیویاں اور بہنیں اس طرح بیہودہ لباس پہنتی ہیں ان کے اندر بری روحیں ہیں. جو عورت بال کاٹتی اس کے اندر بری روح ہے، جو مرد بال رکھتا ہے اس کے اندر بری روح ہے. ہاللیلویہ. خداوند آپ کو برکت دے. استثنا کی کتاب اور اس کا 22واں باب اور اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے عورت مرد کا لباس نہ پہنے اور مرد عورت کا لباس نہ پہنے. اور آج پتہ نہیں چلتا، عورت جا رہی ہو، مرد جا رہا ہو، مرد نے لمبے بال رکھے ہیں، پینٹ پہنی ہے، تو لوگ سمجھتے عورت جا رہی ہے. عورت جا رہی ہو، اس نے بال کاٹے ہیں، مردوں جیسا پینٹ شرٹ پہنی ہے، تو پیچھے سے سارے سمجھتے یہ مرد جا رہا ہے. آج بڑا مشکل ہو گیا دونوں کی جانچ پڑتال کرنا. ہاللیلویہ. کیونکہ ابھی تو تیسری نسل بھی ہے، دوسرے پچھڑے، پتہ ہی نہیں چلتا مرد ہے یا عورت ہے. یہ اس لیے مرد مردوں کا لباس پہنے، عورتیں عورتوں کا لباس پہنے، تب گھر میں خوشحالی آئے گی. پہلا کرنتھیوں 11واں باب 5ویں آیت پھر 16ویں آیت. جو عورت بے سر ڈھکے دعا یا نبوت کرتی ہے وہ اپنے سر کو بے حرمت کرتی ہے، کیونکہ وہ سر منڈی کے برابر ہے. ہاللیلویہ. جو عورت بال کاٹتی ہے کلام کیا فرماتا ہے؟ وہ گنجی ہے. اب وہ بال بٹا نہ بھی لے تو سب کو پتا تو چل ہی گیا یہ گنجی ہے. تو یہ عورت کے لیے شرم کی بات ہے. لوکا کی انجیل پہلا باب 41ویں آیت. اور جو ہی الشبہ نے مریم کا سلام سنا تو ایسا ہوا کہ بچہ اس کے رحم میں اچھل پڑا اور الشبہ روح القدس سے بھر گئی. کلام کیا فرماتا ہے؟ الشبہ روح القدس سے بھر گئی. روح القدس کون ہے؟ اونچی آواز سے، روح القدس کون ہے؟ یہ خداوند یسوع ہے. خداوند یسوع نے اس کو اپنی لپیٹ میں، اپنی گود میں اٹھا لیا، اس بیٹی کو اپنی شفقت اور پناہ میں لے لیا، اور وہ روح القدس سے بھر گئی. کیوں بھر گئی؟ خداوند نے کلام پورا کرنا تھا کہ تیرے گھر بیٹا پیدا ہو گیا اے سردار کاہن زکریا، اور میں اس کو پیٹ سے ہی روح القدس سے بھر دوں گا. اور جب بچہ 6 ماہ کا ہوتا نا پیٹ میں، تو وہ باہر جو بھی ماں کرتی ہے، جو بھی باہر ہوتا بچہ سنتا ہے. اس لیے جب کسی بہن کو خدا بلیس کرے، اولاد دے، تو وہ یاد رکھے، وہ زیادہ سے زیادہ دعا کرے اور خدا کا کلام پڑھے، سنے، عمل کرے، اور اپنی زندگی خداوند کے ہاتھ میں سونپ دے، تاکہ جب آنے والا بیبی دنیا میں آئے تو وہ بلیسنگ والا بچہ ہو. اب یہ مقدس عورت ہے، یہ روح القدس سے بھری ہے. الشبہ نے تو کوئی منادی نہیں کی، اس کو تو روح القدس مل گیا ہے، اس کی تو کوئی منادی نہیں کر رہی. آج اور کوئی لڑکی غیر زبان بولنا شروع ہو جاتی ہے تو اس کی منسٹری بن جاتی ہے، وہ جی پادری بن جاتی ہے. اس لیے یہ سب خدا کے خلاف ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. فنویل کی بیٹی
हन्ना नबिया, आशर का कबीला। लूका दूसरा बाब 36वीं आयत से लेकर 38वीं आयत तक। 85 साल की बूढ़ी औरत रोजों और दुआ में रात दिन गुजारती है। कोई भी एक हवाला नहीं कि इस नबिया ने मुनादी की, कोई कलीसिया कायम की। यूहन्ना चौथा बाब, जो सामरी औरत और बहुत सारे खादमीन कहते हैं कि वो सामरी औरत मुनादी कर रही है, पढ़ के देख लें, वो तो यीशु की गवाही दे रही। और जब सारा सामरी इलाका इकट्ठा हो जाता है तो वो यीशु मसीह के सामने उस औरत से कहते हैं, ऐ औरत, अब हमें तेरी गवाही की जरूरत नहीं है, अब हमने जान लिया है कि ये फील हकीकत दुनिया का मुनज्जी है जो आने वाला था, ये वो नबी है खुदावंद यीशु। तो अब उसकी मुनादी खत्म हो गई। यहाँ से उसने अपनी जिंदगी के बारे में पूछा, गांव में जाके बताया, गांव को इधर लेके आई, इतनी मुनादी की। फिर कहते हैं कि जो मसीह यीशु के कब्र पर वो औरत थी मरियम मगदलीनी, वो जी क्या कर रही है, बिशारत दे रही है भाइयों को आके, वो मुनादी कर रही है। क्या ये मुनादी है? उसने तो जाकर वहां पर जो देखा, खुदा ने फरमाया जाओ जाके इसराइली लोगों को बता दो, मेरे शिगिर्दों को बता दो। उन्होंने जाके बताया, बताने के बाद उसका काम खत्म। जहां पर भी कोई औरत खड़ी हो मुनादी करने के लिए, आप जुर्रत करें और उससे कहें, बेटा बहन, आप खुदा का कलाम पढ़ते हो? नहीं पढ़ते तो पढ़ो और जाके खुदा से माफी मांगो। औरतें मुनादी नहीं करती। हालेलुया। ये कौन सा पैगाम है? ये बाइबल के अंदर वाला पेंटिकॉस्टल पैगाम आपके सामने बयान हो रहा है। और 85 साल की ये बेवा है। 7 साल इसने शादी की थी। 85 में 7 जमा करो तो कितने बनते हैं? 85 और 5 90 और 2 92। 92 साल की औरत थी, रोजे रख रही थी, दुआएं कर रही थी, यरूशलेम शहर की सलामती, इसराइल के 12 कबीलों की सलामती, खुदा इन पर रहम कर, इनको निजात दे, इनको शफकत दे, पनाह दे। आज की ये बहनें बेटियां क्या दुआएं करती हैं? आज ये बहनें बेटियां क्या दुआएं करती हैं नसीहत के लिए? आप ये बहनें जितनी भी यहाँ पर है जो नहीं आई, वो इस इलाके के लिए क्या दुआ करती हैं? अपने खानदान के लिए, अपने मियाँ के लिए, अपने खादम के लिए आप क्या दुआएं करती हैं? ये भी तो एक औरत थी ना, ये मुनादी तो नहीं कर रही, ये खुदा की बेटी है और ये पूरे इसराइल को बचाने के लिए रोजे रखती है। सारी जिंदगी रोजे रखी जा रही है। शादी हुई, 7 साल शादी रही, कोई औलाद नहीं हुई, कोई जिक्र नहीं मिलता, बंदा मर गया, उसके बाद इसने बस खुदा के साथ शादी कर ली। ये खुदावंद तू मेरा दुल्हा, मैं तेरी दुल्हन हूँ, आई लव यू खुदावंद। उसने सिर्फ अपनी जिंदगी खुदावंद को दे दी। रोजे दुआ और हाकिल में जाना, दुआ करनी, रोजे रखने, घर आके रोजा खोलना, दुआ करनी, बस इसराइल की सलामती चाहती थी। आप बहनों में से कोई सलामती की दुआ करता है कि जो यहाँ पर ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, जो यहाँ पर ये खिदमत शुरू हुई है, खुदावंद इसको 4 चांद लगा, खुदावंद इसको बढ़ा। जो लोग नहीं आते, खुदावंद मैं इसको बुलाऊंगी, तू खुदावंद तू उनको आने का फजल बख्श। मेरा ख्याल है यहाँ पर औरतें खुशी नहीं है कि ये मीटिंग शुरू हुई है, ये आगे बढ़े, क्योंकि ये मजमा बढ़ना चाहिए, काम नहीं होना चाहिए, ये बढ़ना चाहिए। कैसे? जब आप पल पल दुआ में रखेंगी बहनें बेटियां, फिर ये जलाल जाहिर करेगा खुदा अपना। हालेलुया। और ऐसा करने से आपको मुनादी नहीं करेंगे। सलातीन की दूसरी किताब और उसका 22वां बाब, उसकी 8वीं से 20वीं आयत जब पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, यूसिया बादशाह इदारे हुकूमत में तौरात की किताब मिली तो बादशाह ने उस वक्त की खुल्दा नबिया के पास 5 लोग नबिया के पास भेजे। और नबिया कहाँ पर है? उस वक्त की नबिया है और वो तोशा खाना के दरोगा सलूम बिन तिकवा बिन खिरकस की बीवी थी। ये यरूशलेम में मिशना नामी मोहल्ला में रहती। और उस वक्त का सरदार काहिन और उसके साथ 2 प्यादे सरकारी, 2 नीम सरकारी, वो बादशाह ने भेजे। हालांकि बादशाह उस औरत को जो नबिया थी अपने महल में बुला सकता था ना, लेकिन उसने खुदा की बेटी की इज्जत की। उसने उसके घर जहां पर वो रहती थी वहां पर अपने लोगों को भेजा कि जाओ उस मुकद्दस बहन से कहो कि दुआ करे और खुदा से पूछे कि मैं बादशाह हूं, मेरे लिए खुदा का क्या पैगाम ये है। अब कोई कहेगा कि खुदा नबिया ने मुनादी की, क्या मुनादी की? कोई मुनादी नहीं, ये तो मुनादी नहीं है। वो नबिया थी, वो दुआ करके खुदा से पूछ के उसने बता दिया। वो तो अपने घर में रह रही है,
ये बाइबल पकड़ के बाहर मोहल्लों में तो नहीं फिर रही, ये तो अपने घर में बैठी है, अपने बच्चों को, अपने मियाँ को पाल रही है। और कोई भी दुआ करवाने के लिए उसके घर जाता है और वो दुआ करती है, खुदा जो कुछ बताता है वो उसको बता देती है, और वो कोई कलाम सलाम नहीं चलाती कि आओ मीटिंग करें, इधर इबादत करें, ऐसा करें। वो खुदा ने मर्दों को ये काम सौंपा होगा। लेकिन आज जो औरतें मुनादी करती हैं वो मुखालिफ मसीह की रूह से भरी हुई हैं। हालेलुया। वो किससे भरी हुई हैं? मुखालिफ मसीह की रूह से। एजबल की रूह, जो एजबल के अंदर रूह काम कर रही थी उस दौर में, उनके अंदर भी वही रूह काम कर रही है, एजबल वाली। अब आगे चलते हैं, लूका दूसरा बाब 41वीं आयत से लेकर 50वीं आयत तक। जब मसीह 12 वर्ष का हुआ तो अपने माँ बाप के साथ फसह ईद मनाने के यरूशलेम गया। यरूशलेम गया, और जब यरूशलेम गया तो वहां पर गया 3 रोज के बाद उन्होंने उसे हैकल में उस्तादों के बीच में बैठे उनकी सुनते और सवाल करते और जवाब देते हुए पाया। क्या उम्र थी खुदा मसीह यीशु की? 12 साल मुकम्मलियत का अदद है, क्योंकि जब तक 12वां रसूल चुना नहीं गया आगे खिदमत नहीं शुरू हुई। हालेलुया। इसराइल का 12वां रसूल जब तक चुना नहीं गया मतिया या मततिया, तब तक आगे खिदमत नहीं बढ़ी। और वो ईद पेंतीकोस्त से पहले चुना गया, 12वां रसूल पूरा हुआ, फिर आगे खिदमत शुरू हुई। मसीह यीशु 12 साल के, बहन को जगाओ। हालेलुया। जी बहन, खुदावंद आपको बरकत दे। मसीह यीशु 12 साल का है, और बड़े बड़े 70 साल 90 साल 85 साल 45 साल के बुजुर्ग रब्बियों के दरमियान बैठकर कलाम की बातचीत हो रही है, सवाल जवाब हो रहे हैं। आज कोई भी खादम आ जाए बाहर से आपको कलाम सुना दे तो आपको तो नहीं समझ आएगी, क्योंकि हमारे बच्चे कलाम ही नहीं पढ़ते। जितने भी हवाले बोले, कोई जल्दी हवाला नहीं निकाला बच्चों ने। ये लेवल है मसीहत में आज बच्चों का, तो क्या होगा फिर? क्योंकि जब बच्चे कलाम पढ़ेंगे इनको पता होगा कौन सी किताब कितने नंबर पर आती है। मैंने हवाला बोला तो उसी वक्त हवाला ऐसे निकालेंगे। इसलिए मेरे अजीजों, हमें जो माँ बाप हैं बच्चों की तरबियत करनी है। मर्द को अपना किरदार अदा करना है मसीहत में, और औरत को अपना किरदार अदा करना है। और 3 दिन बाद जब उसके माँ बाप मरियम और यूसुफ वहां पर गए तो उसकी माँ कहती है, मैं और तेरा बाप कुड़ते हुए परेशान होते हुए तुम्हें ढूंढ रहे थे और तू यहाँ पर बैठा हुआ है। और मसीह यीशु ने क्या जवाब दिया? मुझे अपने बाप का कारोबार करना है। वो तर्जमा गलत हुआ है। किंग जेम्स वर्जन में जो तर्जमा है वो है, वहां पर लिखा है बिजनेस, मुझे अपने बाप का कारोबार करना है, कि मैं अपने बाप का काम करने के लिए आया हूँ। उसका तर्जमा कर दिया मुझे अपने बाप के घर में होना जरूर है। ये नहीं तर्जमा इसका। वहां पर जो ओरिजिनल इब्रानी से मतन हमारे पास पहुंचा है वहां पर लिखा है मुझे अपने बाप का कारोबार करना है। हालेलुया। इफ्सियों 5वां बाब 21वीं आयत से लेकर 23वीं आयत तक। बीवियां अपने शौहर की ऐसी ताबेदारी करें जैसे खुदावंद यीशु की, क्योंकि शौहर बीवी का सर है। शौहरों को भी अपनी बीवियों को मोहब्बत करनी चाहिए, जैसे मसीह ने भी कलीसिया से मोहब्बत करके अपने आप को कुर्बान कर दिया। अब देखो औरत और मर्द का किरदार कलाम में कितना पाकीज़गी के साथ पेश हो रहा। हालेलुया। क्या आपको यहां तक ठीक समझ आई? आने वाले वक्त में बीवियों को क्या करना है, मर्द की किस तरह इज्जत करनी है, यहां से साबित हो रहा है कि जो औरत यीशु मसीह से मोहब्बत करती है ना, वो उतनी मोहब्बत अपने शौहर से करेगी तो पता चलेगा कि ये खुदावंद से मोहब्बत करती है। और मोहब्बत ये नहीं है कि बस उनके कपड़े धो दिए और खाना तैयार कर दिया। मोहब्बत ये है उसकी ताबेदारी करनी है। जो मर्द कहेगा सलाह मशवरा करके काम करे मियाँ बीवी। ये नहीं है मियाँ अपनी मर्जी करता रहे, बीवी से ना पूछे, बीवी अपनी मर्जी करती रहे, एक दूसरे के मुखालफ रहें और शैतान आपका घर तबाह कर दे। हमारे पास एक मिसाल है पॉल रॉडर की। वो एक सुबह नाश्ते पर अपनी बीवी के साथ झगड़ा, और झगड़ा करने के बाद नाश्ता करके वो अपना सर झुकाए हुए
गेट की तरफ चला गया और उसने अपनी बीवी को अलविदाई बोसा दिया और गेट के बाहर हो गया। गली में जाते हुए उसने सोचा, अगर मैं शाम वापस आते आते रास्ते में फैक्ट्री में मर जाऊं तो मेरी बीवी के साथ जो मेरा झगड़ा जो है सुबह सुबह, तो फिर मैं क्या करूंगा? मेरी बीवी तो मुझे नफरत करेगी। तो मैंने जो झगड़ा किया पहले ये मैं सुलह करूं फिर वापस जाऊं। देखो ना, खुदा के बेटे है ना। तो रास्ते में वो वापस आया और जब उसने दरवाजा नॉक किया तो बीवी उसकी कहाँ खड़ी है? वो भी मेन गेट बंद करके आई नहीं, वो भी मेन गेट कैसे दरवाजा खोले ना तो उसके पीछे हो गए, तो उधर ही रोई जा रही है, रोई जा रही है, रोई जा रही है कि मेरा बंदा आज मुझे ना लड़के क्यों गया, मेरे साथ आज उसने मोहब्बत वाला बोसा क्यों नहीं दिया। वो वापस आया और उसने अपनी बीवी को आवाज दी और वो उसको देखकर और रोई और उसने अपनी बीवी को गले लगाया। दोनों ने एक दूसरे से सॉरी किया। हालेलुया। दोनों ने एक दूसरे से सॉरी किया और उसने अपनी बीवी का अलविदाई बोसा लिया, यानी उसका माथा चूमा, उससे प्यार किया और खुशी के साथ उसको छोड़कर चला गया। क्या अब मैं अगर मर भी जाऊं तो मुझे मेरी बीवी अच्छे लफ्जों में याद करेगी कि वो मुझसे बहुत प्यार करता। इसलिए आप मर्दों को, औरतों को क्या करना चाहिए? ये सच्ची गवाहियां, खुदा के कलाम की सदाकतें याद रखें अपनी जिंदगी, ताकि आपके घर बचे रहें। हालेलुया। यिर्मयाह 31वां बाब 22वीं आयत, ऐ बरगश्ता बेटी तू कब तक आवारा फिरेगी? क्योंकि खुदावंद ने जमीन पर एक नई चीज पैदा की है कि औरत मर्द की हमायत करेगी। औरत मर्द की हमायत क्या होती है? तरफदारी। हालेलुया। अब देखें, बहनों को खुदा का कलाम इज्जत देता है। जब शादी होती है तो एक औरत कुंवारी होती है, वो अपने मियाँ से बड़ा प्यार करती है, वो काम पे चला जाता है, वो उसका इंतजार करती है, उसके कपड़ों को पकड़ पकड़ के उसको याद करती है, कपड़े धोती है, याद करती है, अकेली है, उसका मियाँ उसके दिल में रहता है और मियाँ भी वहां पर अपनी बीवी को बहुत मिस करता है, याद करता है। कलाम कहता है जब शादीशुदा औरत अपने मर्द को खुश रखने की हर कोशिश करती है, जब अकेली है तो अपने मियाँ को सोचती है उसके बारे में कि मैं इसके लिए क्या अपनाऊं, क्या करूं, और जब उसकी औलाद हो जाती है तो उसकी मोहब्बत तकसीम हो जाती है। मियाँ की जो मोहब्बत ज्यादा मियाँ से करती थी अब वो बच्चों में चली गई है, तो उसका ये मतलब नहीं कि मियाँ को छोड़ दिया। अब वो बच्चों को सुबह सुबह तैयार करती है, स्कूल छोड़ने की जाती है, नाश्ते करवाती है और वापस आती है, सब्जी लेकर आती है और फिर दोपहर के बच्चों के खाने के इंतजाम करती है और जब बच्चों को लेकर आती है, खाना शाना बनाती है, तो सुबह से काम कर रही है। क्या बहन थक नहीं गई? वो भी इंसान है ना, थकी है बहन, फिर थकती है, फिर सोचती है मेरे मियाँ को ये चीज़ पसंद है, मैं उसके लिए ये चीज़ बनाती हूँ, या मीठा या नमकीन या गोश्त या कुछ सब्जी जो मियाँ को बहुत पसंद होती है वो अपने मियाँ के लिए बनाती है और फिर शाम को अपने मियाँ का इंतज़ार करना शुरू करती है। कब मेरा मियाँ आएगा, कब मैं अपनी मियाँ के साथ खाना खाऊंगी। ये इसकी मोहब्बत है ना। क्या औरत नौकर है? भाइयों से, क्या औरत नौकर है? कलाम फरमाता है कि वो आपके दिल से ली गई है, ना सर के ऊपर ना पैरों के नीचे, बराबर आपके दिल से खुदा ने औरत को निकाला। इसलिए खुदा फरमाता है औरत को नाजुक ज़र्फ जान कर उसकी इज्जत करो और उससे प्यार करो। कोई भी मर्द अपने बदन के साथ दुश्मनी नहीं रखता और बीवी मर्द का बदन है। आप अपने बदन को फिट रखने के लिए ताकत वाली चीज़ें खाते हैं, सर्दी हो तो भांडा बना के खाते हैं, गर्मी हो तो शरदाई पीते हैं, ताकत वाली चीज़ें खाते हैं। कलाम फरमाता है इसी तरह जिस तरह बदन को प्यार करते हैं अपनी बीवी से भी प्यार करें। क्यों? आप नौकर रखते हैं, नौकर क्यों काम करती है, क्यों झाड़ू देती है, झाड़ू देती आती है, बैल देती है मैं आ गई हूँ, वो काम करके आती है मैं जा रही हूँ, चली गई है। बीवी नहीं कहीं जाती, बीवी आपका इंतजार करती है, बीवी हर काम करती है। अपने माँ बाप को भूल गई, अपने बहनों भाइयों को भूल गई, मियाँ के बहनों भाइयों को अपना बहन भाई, मियाँ के माँ बाप को अपना माँ बाप। अब यही मेरा घर है, वहां से आई थी यहाँ पर ही मरूंगी।
یہ عورت کی زندگی ہے خدا کے کلام کے مطابق. تو کیا عورت کوئی میاں سے پیسے لیتی ہے؟ بے لوث محبت ہے یہ عورت کے اندر خدا کی، سارے کام کرتی ہے اور میاں سے محبت کرتی ہے. اب کوئی نوکر رکھیں تو وہ کپڑے دھونے کے علیحدہ پیسے، جھاڑو پونچھ کے علیحدہ پیسے، ہر کام کے علیحدہ پیسے، لیکن بیوی کوئی پیسے نہیں لیتی، پھر بھی ہر چیز اوکے رکھتی ہے. اس لیے بہنوں کے لیے زوردار تالی، کیونکہ خدا بہنوں کو کلام میں عزت دیتا ہے. بہنیں کوئی شک نہیں اس میں بہت کام کرتی ہیں بہنیں، اور یہ خداوند نے بہنوں کو بڑی برکت دی ہوئی ہے. ہاللیلویہ. نبی برادر برانم کہتے ہیں میرے پاس ایک سوال آیا، ایک عورت میرے پاس سوال لے کر آئی، اگر آپ کا مرد آپ کو چرچ نہیں جانے دیتا، اگر آپ کا مرد آپ کو چرچ جانے سے روکتا ہے، دعا کرنے نہیں دیتا، تو آپ صرف اس مرد کے لیے، عورت کے لیے کلام نبی کہتا ہے دعا کریں، کیونکہ کلام فرماتا ہے کہ عورت اپنے کردار سے، اپنی مسیحی پاک زندگی سے اپنے مرد کو بچا سکتی ہے، اور اسی طرح مرد اپنے پاکیزہ چال چلن سے اپنی بیوی کو بچا سکتا ہے. جسم میں اوپر جا کر کوئی نہیں کسی کو بچائے گا. ایک عورت آئی، عورت نے کہا پاسٹر جی میرا شوہر مجھے مارتا ہے جتنا وہ مار سکے. اچھا، چرچ جانے سے منع کرتا ہے، دعا کرنے سے بھی منع کرتا ہے، پاسٹر جی میں کیا کروں؟ آپ کے ذہن کے مطابق اس بہن کو کیا کرنا چاہیے؟ دعا کرنی چاہیے. ہاللیلویہ. نبی برادر برانم کیا کہتا ہے؟ کلام کے مکاشفے کو کھولتا ہے. نبی کہتا ہے اس نے حکم دیا ہے اگر آپ کا شوہر منع کرتا ہے تو آپ اس کی پیروی کریں. آپ بہن آپ چرچ نہ جائیں. اگر آپ کا شوہر کہتا کہ آپ چرچ نہ جائیں تو آپ نہ جائیں، لیکن اگر دعا کرنے سے، کلام پڑھنے سے منع کرتا ہے تو آپ اپنے مرد کو چھوڑ دیں. ہاللیلویہ. دیکھا خدا کے کلام کا جواب، آپ اپنے مرد کو چھوڑ دو، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے جو کوئی میری خاطر اپنے ماں باپ کو، بیوی بچوں کو، بہن بھائیوں کو چھوڑ دے گا وہ میری بادشاہی کے لائق ہے. تو اس میں خالی مرد نہیں ہے، عورتیں بھی. اگر اس کا مرد اس کو مارتا ہے، فضول ہی مارتا ہے، سارے کام بھی کرتی ہے کر کے، سارا خاندان آپ کا چلا رہی ہے، پھر کیوں تو مارتا ہے؟ تیرے کپڑے دھوتی ہے، تجھے کپڑے استری کر کے دیتی ہے، وقت پر تجھے کھانا دیتی ہے، خوراک دیتی ہے، تو کیوں مارتا ہے؟ کہ وہ دعا نہ کرے؟ تو کیوں مارتا ہے؟ وہ چرچ نہ جائے؟ چرچ نہ جائے وہ ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ مرد اپنی بیوی کہتے ہیں یہ دعا نہ کرے تو کلام فرماتا ہے اس مرد کو چھوڑ دو، کیونکہ آسمان پر آپ کو یہ مرد نہیں بچائے گا، آپ کو دعا اور کلام بچائے گا. ہاللیلویہ. آسمان پر کوئی کسی کی بیوی نہیں ہے. نبی برادر برانم کی اپنی بیوی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا. کوئی مرد ہے کون جھوٹ بولے گا کہ آج تک میری بیوی کے ساتھ لڑائی نہیں ہوئی؟ میاں بیوی کی لڑائی تو 1 منٹ میں لڑائی، 1 منٹ میں صلح، ساری زندگی لڑائی ہوتی رہتی ہے، لیکن وہ لڑائی نہیں ہوتی، وہ تو گپ شپ ہوتی ہے. یہی تو پیار ہوتا ہے. جان بوجھ کے میرے عزیزوں، مرد جان بوجھ کے دیکھتے میری بیوی تکی ہے تو جان بوجھ کے اپنی بیوی کو تنگ کریں گے. ہاللیلویہ. اس کو تنگ کریں گے. اگر بیوی جلدی سو گئی ہے تو گھر میں سناٹا ہے، تو بندہ کہے گا یار آج وہ بڑا شور شرابہ نہیں ہو رہا، بیوی سو ہوگی، اور جان بوجھ کے اس کو اٹھائے گا. وہ کہہ رہی میں تکی ہوں، میں ٹھیک نہیں ہوں، کہہ رہا کہ ایسی بات چھیڑے گا، اٹھ کے بیٹھ جائے گی، لڑائی شروع. یہ لڑائی نہیں ہوتی، یہ تو پیار ہے. ہاللیلویہ. لڑائی تو ابلیس کرواتا ہے، لیکن جب اس طرح کی لڑائی ہوتی ہے تو دونوں تھوڑا تھوڑا باتیں کرتے رہیں گے، ہنستے رہیں گے، دل میں چہرے سے مسکراہٹ تھوڑی نظر آئے گی. اس کا مطلب یہ پیار ہے. خداوند آپ کو برکت دے. نبی کی اپنی بیوی کے ساتھ لڑائی ہو گئی. بیوی نے بہت زیادہ شور شرابہ کیا. اس نے کہا کہ میں نے وہاں پر جانا، شاپ کے مالے وہیں میں نے کپڑے خریدنے ہیں. نبی نے کہا میں نے نہیں لے کے دینے وہ کپڑے، میں نہیں جاؤں گا. بچوں نے بھی شور بہت مچایا. اب غور سے دیکھیے گا کہ مردوں کو جب اس طرح گھر ابلیس لڑائی کرواتا ہے تو مردوں کو کیا کرنا چاہیے.
नबी कहता मेरी बीवी को नहीं पता, मैं उसके साथ वो लड़ाई करती जा रही, बोली जा रही है, उसको नहीं पता, मैं उसके पास खड़ा हूँ और उसके सर के ऊपर हाथ रखा हुआ है, मेरी बीवी को नहीं पता, और मैं दुआ कर रहा हूँ, ऐ मेरे खुदावंद रहम कर, फजल कर, ये मेरा बदन नाराज हो गया खुदावंद, जो भी परेशानी बुरी तस्वीर है खुदावंद तेरे यीशु नाम से चली जाए, तू उस मेरे घर के माहौल को बरकरार कर, आमीन करके थोड़ा सा पीछे हट गया। थोड़ी देर बाद बैठ गया नबी, बीवी जाके किचन में काम कर रही है, तो खादम भी चला गया किचन में और अपनी बीवी के साथ काम करना शुरू हो गया। तो खुद ही पूछता है, वो तुम कह रही थी वो जाना है उधर, अब चेक भी कर रहा है कि मैंने जो दुआ की थी पूरी हुई है कि नहीं हुई। अब उसके अंदर से वो चीज़ जा चुकी है, लड़ाई झगड़ा खत्म। कहती हाँ ठीक है, वो आप कह रहे थे ना नहीं लेके देना, ठीक है मैं नहीं जाऊँगी। हालेलुया। इस तरह जब घर तबाह होते हैं छोटी छोटी बात से होते हैं, और हमने घरों को किस तरह बचाना है? दुआ से बचा सकते। हमारे पास एक ही हथियार है जो किसी को नजर नहीं आता। बातों बातों में मर्दों से हो जाती है बात, औरतों से भी बात हो जाती है। गुस्सा करें, गुनाह ना करें। कलाम फरमाता गुस्सा करो गुनाह ना करो, सूरज डूबने तक आपकी लड़ाई गुस्सा खत्म। और अगर सूरज डूबने के बाद आपकी लड़ाई हुई है तो चांद के डूबने तक आपका गुस्सा खत्म। और अगर सुबह 6 बजे या 4 बजे लड़ाई शुरू हुई है तो सूरज निकलने से पहले खत्म और डूबने तक खत्म। अब इब्लीस को मौका ना दो। हालेलुया। मेरे दीदो, मूसा की माँ ने मूसा को 3 महीने किस तरह पाला पता है आपको? चोरी पाला था। बादशाह ने हुक्म किया था फिरौन ने कि 2-3 माह के बच्चे कत्ल कर दो इसराइलियों के, और किस तरह उस माँ ने उसको रोने नहीं दिया, खुदा के कलाम पर अमल किया। 8 दिन उसका 8वें दिन खतना भी किया। और जब बच्चे का खतना होता है तो बच्चे को दर्द होती है, उस माँ ने कहाँ उसको छुपा छुपा के रखा, इसकी बात बाहर मुल्क में ना सुनी जाए, कोई शिकायत ना कर दे। कैसी है ये माँ, खुदा की पैरवी कर रही है पूरी पूरी। आज इसराइली माएँ आप सब माँओं से सवाल करती हैं, क्या मसीही बनते हैं, हमसे ज़्यादा आप चाहती हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? हालेलुया। आपको पता है यूसुफ नबी के बारे में? यूसुफ नबी जब बेचा गया उसने गुनाह पर फतह पाई। आज जो शादीशुदा मर्द है ना, शादी के बाद कहते हैं कि ठीक है मेरा डर खत्म हो गया। शादी के बाद ज़्यादा गुनाह करते हैं ये अक्सर मर्द। पता है आपको, जो नाम के मसीह हैं ये अपनी सालियों को भी फंसाया होता है। जहाँ काम करते हैं वहीं पर भी कोई ना कोई औरत रखी होती है। कलाम फरमाता है वालिदैन को अपने बच्चों पर और अपने जवाइयों पर नजर रखनी चाहिए। एक बेटी दी है तो एक ही बेटी उसको दें बस। ये कलाम की बातों पर अमल करें, क्योंकि जब जवाई अक्सर आए होते हैं ना तो अक्सर माँ बाप पता क्या कहते हैं, चल ठीक है तू अपने भाई ना चली जा, भाई तू अनु ले जा, तू अनु ले जा, तू अनु ले जा। ऐसे ना किसी के साथ भेज दें। एक बेटी दी है उसी तक रखे उसको, वरना फिर आप बाद में शर्मिंदा होंगे। क्या मैंने ठीक कहा? हालेलुया। हम खुद मौका दें और हम खुद ही उस पर काबू पाएं। इससे बेहतर है कि हम मौका ही ना दें। हमें खुद इन बातों पर नजर रखनी चाहिए, और जब हम नजर रखेंगे तो कभी भी कोई शर्मिंदगी हमारी जिंदगी में नहीं आएगी। वो खुदावंद यीशु सारी शर्मिंदगियां खत्म कर देगा। इसी तरह नबी ने, यूसुफ नबी ने अपनी जवानी को संभाला, और उस नबी ने वहां पर उस औरत के साथ फूतीफरा की बीवी के साथ ज़नाकारी नहीं की। वो औरत कह रही है मेरे साथ कर, कहता है नादान औरत, मैं अपने खुदावंद का गुनाह करूं और तेरा मियाँ जो मेरा मालिक मैं उसका भी गुनहगार ठहरूं, जा अपना काम कर। ये है खुदा के बेटों का लेवल। पहला कुरिन्थियों 3 बाब 9वीं आयत में लिखा है, जिनमें खुदा का तख्म बना रहता है वो गुनाह कर ही नहीं सकते। जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया है और उसके बाद जिस खुदाई पाक उसके अंदर आकर रहता है वो गुनाह कर ही नहीं सकते। कौन कहता है गुनाह हो जाते हैं बपतिस्मों के बाद? वो तालीम ही ठीक नहीं देते। कैसे गुनाह हो जाता है? अयूब क्या करता था आपको पता है? अयूब पहला बाब 34 से 5 पढ़े। ये माँ बाप का फर्ज है कि उन्होंने क्या करना है। अयूब सुबह सुबह मुंह अंधेरे उठता
और दुआ करता, दिल खोल के खुदावंद के आगे शुक्रगुजारियां करता कि तूने मुझे ऊज की सरजमीन में बहुत मालदार और ब्लेसफुल इंसान बनाया है। मैं तेरा जितना भी शुक्र अदा करूं उतना ही कम है। इसके 10 बेटे, तीन बेटियां 7 बेटे थे, 10 बच्चे थे। उनके उठने से पहले ही कुर्बानियां करता था कि जमाना बुरा है और ए खुदा मेरे बेटे जवान हैं, मेरी बेटियां जवान हैं, किसी सबब से किसी के पीछे लग के बातों बातों में छोटी छोटी गुनाह ना कर बैठे, छोटी छोटी बात तेरे खिलाफ, भाई को जगाए, छोटी छोटी बात तेरे खिलाफ ना कर बैठे। ऐ खुदावन मैं ये कुर्बानियां चढ़ाता हूँ इनके उठने से पहले, खुदावंदा मेरे बच्चों को माफ कर दें। अगर रोजमर्रा जिंदगी में कुछ छोटी छोटी बात हो जाए, आज आप अय्यूब को की तरफ देखें तो आप माँ बाप को क्या करना चाहें? आप अपने बच्चों के लिए कौन सी कुर्बानियां चढ़ाएंगे? हमारे लिए खुदा ने अपना बर्रा कुर्बान कर दिया है। अब हमें कोई सुबह सुबह बकरे कुर्बान करने की जरूरत नहीं है। हमें सुबह सुबह उठकर खुदावंद यसुम मसीह के आगे झुकने की जरूरत है। और मर्द अपनी बीवी के लिए दुआ करे, और बीवी के बाद बेटियों के लिए दुआ करे, फिर बेटों के लिए दुआ करे, अपने खानदान के लिए, माँ बाप के बहनों भाई अपने कारोबार के लिए दुआ करे। जब बीवी उठे उससे पहले तो वो भी इसी तरह अपने लिए दुआ करे, अपने मियाँ के लिए, बेटों बेटियों के लिए, अपने जीजों बहन भाइयों माँ बाप के लिए दुआ करे। तो कैसे उस घर में गुनाह हो? क्योंकि सुबह सुबह शुक्रगुजारी की कुर्बानियाँ, होंठों का फल, दिल के नजराने खुदावंद के आगे सुबह सुबह मुंह दे रखे हैं। तो वो खुदावंद यसु जो यहोवा है हर जगह मौजूद है, तो वो रात को पहले पैर तीसरे पैर आपकी दुआओं का क्यों नहीं जवाब देगा मेरे अजीजों? हालेलुया। इसलिए हमें क्या करना है? सुबह सुबह दुआ करनी है। आखिर में एक हवाला लेंगे, दूसरा शमूएल 6 बाब, घरों में कैसे बरकत आती है ये दिन गिन लेना, कैसे बरकत आती है। हालेलुया। दूसरा शमूएल 6 बाब और उसकी 9वीं आयत से, और दाऊद उस दिन खुदावंद से डर गया और कहने लगा कि खुदावंद का संदूक मेरे यहाँ क्यों कर आए? और दाऊद ने खुदावंद के संदूक को अपने यहाँ दाऊद के शहर में ले जाना ना चाहा, बल्कि दाऊद उसे एक तरफ जाती उबेद अदूम के घर ले गया। और खुदावंद का संदूक जाती उबेद अदूम के घर में 3 महीने तक रहा। कितने दिन? 90 दिन, 3 महीने तक रहा। और खुदावन ने उबेद अदूम को और उसके सारे घराने को बरकत दी। हालेलुया। किस तरह बरकत मिली? कितने दिनों में? 90 दिनों में, 3 महीनों में कितनी बरकत मिली? अब पहले यहाँ पर बात करेंगे उसको बरकत कैसे मिली। उसके घर में खुदा का संदूक चला गया था और कीकर की लकड़ी का संदूक बना था, उसके ऊपर सोना मुड़ा था और 2 केरूबी थे, फरिश्ते थे। और उसके अंदर क्या था? अहद का वो संदूक था, उसके अंदर खुदा के हुक्म थे। और वो हुक्म ये है, शरीयत की किताब थी, यही कलाम मुकद्दस उसके पास था। उसने क्या किया? उसने कहा बादशाह ने खुदा का अहद का संदूक मेरे घर भेज दिया है, मैं तो दुनिया में बहुत लकी हो गया हूँ। हालेलुया। उसने क्या कि उसके बहुत बड़ा घर था, उसने एक कमरा मखसूस किया, अपनी सारी औलाद को, अपनी बीवी बेटियों को और उनके बच्चों को हुक्म किया कि कोई भी इस कमरे में जूती लेकर अंदर ना आए, जो आएगा वो मुझसे मार खाएगा। क्योंकि अपने घर में बादशाह है ना, तो बादशाह ने हुक्म किया है, बरकत कैसे खुदा से लेनी है। अब वो घर मखसूस हो गया कमरा, और एक कमरे में ऊंची जगह पर खुदा का अहद का संदूक रख दिया है। और सुबह सुबह बीवी उठती है और मुंह हाथ धोती है, नहाती है, पाक से वो कमरा खोलती है और अहद के संदूक के आगे जाके सजदा करती है और दुआ में ठहरती, घुटने टेक के रो रो के दुआएं करती है। क्या बात है। हालेलुया।
पहले ऐसे नहीं था। मियाँ उठता है, वो मुंह हाथ धोता है, नहाता है, तो वो भी आता है, घुटने टेकता है और खुदावंद के अहद के संदूक के आगे शुक्रगुजारी करता है, उन्होंने मुझे जिंदगी बख्शी भाई कुछ गाएं। हालेलुया, ये सब की बरकत के लिए है। और जब वो इस तरह कर रहा था तो 1 महीना गुजरा, तो तब कौन से कारोबार होते थे? खेती बाड़ी, काश्तकारी, फसलें अपने अरूज पर पकी हुई थी। जब 1 महीना गुजरा, फसलें तैयार हो गईं, अब उनकी कटाई का और बेचने का वक्त आ गया, तो 1 महीने के अंदर उसकी जो फसलें थी वो खुदावन ने सोने की बना दी। यानी कि उनके अंदर बरकत दे दी खुदा ने, क्योंकि उसका सारा घराना, उसके बेटे बेटियां क्या करते हैं, वो उस कमरे में वैसे नहीं जाते, तभी जाते हैं जब खुदावन के आगे दुआ करनी, चाहे सुबह दोपहर शाम, सब उस कमरे में जा जाकर दुआएं करते हैं और खुदावन की सच्चाई पर खड़े हो गए। और खुदावन ने सारे खानदान को ब्लेस किया, और जब वो उन्होंने अनाज आगे फरोख्त किया तो उनको बहुत लाखों का प्रॉफिट हुआ। इतना 1 महीने के अंदर प्रॉफिट हुआ। फिर उसने क्या किया, उसने जो अपने साथ के खेत थे, इधर की जमीनें उधर की जमीनें, उसने उस पैसे को वहां इन्वेस्ट कर दिया, उसने वो भी खरीद ली, और अगली फसल बोई तो महीने बाद फसल फिर तैयार, और फिर उन्होंने खुदावंद की शुक्रगुजारियां की, खुदावंद की सोगतनी कुर्बानियां की, खुदावंद के लिए बहुत ज्यादा काम किया और बड़ा पैसा खुदावंद के जलाल के लिए दिया, और बड़ा प्रॉफिट हुआ। 2 महीने 60 दिन हो गए। 60 दिन के अंदर वो लैंड लॉर्ड बन गया बंदा, जाती उबेद अदूम, इतना अमीर हो गया कि अभी बादशाह तक उसकी खबर पहुंचनी है, अगले हवाले जब पढ़ेंगे। इतना अमीर हो गया कि बादशाह तक पता चल गया कि वो बंदा इतना अमीर हो गया है, ये सारी जमीनें जो थी ना उनकी, उसने खरीद ली हैं। इतना अमीर हो गया था 90 दिनों में। जब 90 दिन पूरे हुए तो वो इतनी जमीनों का मालिक बन गया, और वो इसी तरह खुदावंद की शुक्रगुजारियां करता, और उसका घराना बस खुदावंद के आगे झुकता, खुदावंद के कलाम की इज्जत करता। आज यही अदूम, जाती उबेद अदूम के घर यही कलाम था। आज आपके घरों में भी यही कलाम है। अगर बरकत पानी है, आज लिख लो ये हवाला, और 3 महीने लिख लो। 3 महीने के अंदर खुदा आपको बरकत देगा। आप भी जाती उबेद बने, आपकी बीवियां, आपके बच्चे भी जाती उबेद अदूम के घराने की तरह खुदा उनके वफादार बने, तो वो खुदा बदला नहीं है, वो कल और आज बल्कि अब तक यकसा है। वो 3 माह में अपने कलाम को पूरा करेगा। हालेलुया। आगे देखें, और दाऊद बादशाह को खबर मिली कि खुदावंद ने, किसने? खुदावंद ने जाती उबेद के घराने को और उसकी हर चीज में खुदा के संदूक के सबब से बरकत दी है। तब दाऊद गया और खुदा के संदूक को उबेद अदूम के घर से दाऊद के शहर में खुशी खुशी ले आया। और ऐसा हुआ कि जब खुदावंद के संदूक के उठाने वाले 6 कदम चले तो दाऊद ने 1 बैल कुर्बान किया और एक मोटा बछड़ा ज़िबा किया, और दाऊद खुदावंद के हुजूर अपने सारे जोर से नाचने लगा। और दाऊद कतान का फूद पहने था, और दाऊद और इस्राएल का सारा घराना खुदावंद के संदूक को ललकारते और नरसिंगा फूंकते हुए लाए। उन्होंने कहा कि 3 महीने मैं बादशाह हूँ, मुझे इतनी तरक्की नहीं हुई, तो 3 महीने में ये गरीब इतना अमीर हो गया सिर्फ खुदावंद का कलाम रखने से, उस पर अमल करने से। तो आप सबके घर में ये खुदावंद का कलाम पड़ा हुआ है, आप इसकी कदर करें। ये खुदावंद है, इस कलाम की कदर करने से, इज्जत करने से, ये खुदा का कलाम है। हमारे घरों में औरतों के ज्वेलरी बॉक्स लैदा होते हैं, उनके कपड़ों की अलमारियां लैदा होती हैं, लेकिन कलाम कहाँ पर पड़ा होता है? कलाम ऊंची सी जगह पर पड़ा होता है, या फ्रिज के ऊपर रखा होता है, या वो बर्तनों के ऊपर रखा होता है, और डस्ट से भरा होता है। तो फिर बरकत कहाँ से आनी है? जाती उबेद उनको पढ़ के आनी। हालेलुया, हालेलुया। इस तरह सब घराने बरकत पाते हैं। अमाल 16 बाब और उसकी 25वीं आयत से लेकर 34वीं आयत तक, वहां पर पौलुस क्या फरमाता है? द्रोगा ने खुदावंद यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया और साथ ही सारे घराने का बपतिस्मा हुआ। वहां पर लिखा है, तू खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना निजात पाएगा।
ये घर के सरबराहों से कलाम हो रहा है खुदावंद का। अगर घर का सरबराह ठीक नहीं होगा, दुआ गो नहीं होगा, कलाम पढ़ने वाला अमल करने वाला नहीं होगा, तो उसकी औलाद और उसकी बीवी बच्चे कैसे होंगे। अगर आप चाहते हैं कि खुदावंद आपको बरकत दे, लानत ना दे, तो मेरे अजीजों खुदावंद का डर और उसका खौफ अपनी जिंदगी में माने। आमीन। जिनके घर में कलाम है, कलाम को पढ़ें और अमल करें। जो पढ़ नहीं सकते वो उसकी ऐसी इज्जत करें कि ये सामने खुदा बैठा है और ये खुदावंद के सुनसी आपके सामने है, तो खुदावंद आपको बड़ी बरकत देगा। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो, ताकि बहनों का और भाइयों का मसीह में किरदार आला। हालेलुया। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आए हम सब अपने कदमों पर खड़े हों और खुदावंद से बरकत चाहें। हालेलुया। दुआ करने से पहले मैं आप सबसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप सबको बरकत मिली? ये जिसको बरकत मिली वो हाथ खड़ा करे और दुआ ताली बजाकर हाथ करे। और जो बहनों को मैंने बताया था अभी कि कौन यहाँ पर मसीह है, अगर आप मसीह का कलाम कबूल करते हैं तो जितनी बहनों ने जेवर पहने हैं और कोके नथलियाँ पहनी हैं, क्या वो खुदावंद का डर को मानते हुए इसको उतारना पसंद करेंगी? हाथ खड़ा करके लहरा के बता दें हाँ या ना, क्योंकि मैं आपके लिए क्या दुआ करूंगा अभी, क्या बरकत मांगू। क्या खुदा मैंने तेरा कलाम सुनाया और किसी ने आमीन नहीं कहा, मैं इनके लिए ये बरकत मांगता हूँ। कौन है जो चाहती है कि मैं आज के बाद सोना नहीं पहनूंगी, मैं आज के बाद कंगन नहीं पहनूंगी और ग्लू बंद नहीं पहनूंगी, पजेब नहीं पहनूंगी, नाक में कोके शोके जो पहने हैं वो उतार दूंगी। खुदावंद को ये नहीं पसंद, मैं खुदावंद की बेटी हूँ, खुदावंद तू मुझे माफ कर, मैंने पहले नहीं सुना था, और अगर सुना था तो आज फिर 2, 4 या 10 मरतबा या ज्यादा मरतबा सुना, खुदा मुझे माफ कर। हालेलुया। और जो मुझे सुन रहे हैं, अगर उनमें से बहनें बेटियां हैं जिन्होंने ये कलाम सुना है, तो उनसे भी गुजारिश है, ये मेरा कलाम नहीं है, ये कलाम खुदावंद यीशु मसीह है, और आप इसकी इज्जत करें तो खुदावंद आपको बरकत देगा। क्योंकि आसमान पर आपको कोई पादरी, कोई भी मिशन नहीं बचाएगी, आपका मियाँ नहीं बचाएगा, सोना चांदी नहीं बचाएगा, क्योंकि आसमान पर यरूशलेम शहर की सड़कें खालिस सोने की हैं। सोना हमारे पैरों पर आएगा, हमें सोने की नहीं परवाह। आए हम उसकी शुक्रगुजारी करें। कदूस मेहरबान खुदावंद प्यारे बुजुर्ग बाप, आसमान और जमीन और समंदर के मालिक और खालिक अज़ली और रब्बी बुजुर्ग बाप, जो तू था, जो तू है, जो तुम्हारे वाला है, तेरा यीशु नाम मुबारक है। और मुबारक है ये लोग जो तेरे कलाम को सुनने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। और मुबारक है खुदावंद जी भाई हमीद और भाई लुका भाई, जो खुदावंद तेरे जलाल के लिए अपनी जिंदगियों को तैयार किए बैठे हैं। खुदा ताकि इस इलाके में सिर्फ तेरा कलाम, तेरी शरीयत, तेरे कानून और तेरा ही नाम जलाल कर करे खुदा। तू इन दोनों भाइयों को बड़ी कुव्वत दे, हिकमत दे, अपने कलाम की और इज्जत दे, अपने यीशु नाम की और शोहरत दे खुदावंद जी अपने कलाम की, ताकि खुदावंद तेरे नाम से ही जाने जाए खुदावंद करे खुदा। क्योंकि तू जिसको आसमान से खुदावंद जी ब्लेसिंग देता है, कलाम देता है, इज्जत देता है, शोहरत देता है, दौलत देता है और हिकमत और दनाई और पाकरू का मसा और लिबास देता है, कोई छीन नहीं सकता। खुदावंद इन दोनों भाइयों को ये ब्लेसिंग दे करे खुदा, ताकि तेरे इरफान में, ईमान में, खिदमतगारी में, वफादारी में बढ़े। अपने पाक रूह से इनको दुआ करने की बरकत, अमल करने की बरकत और तेरे हजूर में वफादार रहने की बरकत। कलाम पढ़ें, उस पर अमल करें, तेरे मुकाशे को पढ़ें और जाने और समझें और रूह को बचाने वाले हो प्यारे खुदा। तेरे रूह की नेमतें, तेरे रूह के हथियार और तेरी मर्जी इनकी जिंदगी के लिए मांगता प्यारे खुदा। और जो कुछ भी खुदावंद आज इन्होंने तेरे खादम भाई जानकर किया है, ये सारा जलाल तेरे यीशु नाम को हमेशा मिलता है मेरे खुदा। और उनके किचन में, कमाई में, इनकी जिंदगी में तेरे यीशु नाम की बरकत आए और खुदावंद जी तेरे बुजुर्ग यीशु नाम को जलाल मिले। ऐ खुदावंद आज यहाँ पर खुदावंद खुदा जो मैंने कलाम सुनाया है बहनों के लिए, खुदावंद जी तू ही जानता है किस बेटी ने खुदावंद जी तेरे डर खौफ में मजमे के अंदर खड़ा होकर कहा कि आज के बाद मैं ये काम नहीं करूंगी। खुदावंद तू से बरकत दे, क्योंकि बाप मैंने भी किसी औरत की, बहन की, बेटी की अभी तक गवाही नहीं सुनी जिसने खुदावंद तेरे डर खौफ में ये खुदावंद जलाल जाहिर किया हो, तेरी गवाही के लिए अपने बदन को पेश किया हो प्यारे खुदा। मेरे खुदावंद जी आज तेरे कलाम के मुताबिक मैं बरी हूँ और तेरा कलाम मैंने किसी जिंदगी में बो दिया है। अब खुदावंद ये आपका ही काम है, आप जाने और ये जाने। खुदावंद तेरा जलाल जाहिर हो, हमारा यहाँ पर आना सुलह का बाइस हो, ठोकर का नहीं बल्कि जिंदगी का बाइस हो।
तेरे बुजुर्ग यीशु नाम से दुआ मांगता हूँ। खुदावंद इन सबों की सुन और कबूल कर। ये दुआ आपके बुजुर्ग यीशु नाम से मांगता हूँ, आमीन। इब्राहिम और इसहाक और यकूब का खुदा पर हमेशा अपना जलाल जाहिर करे। खुदावंद का चेहरा आपका जलवागर हो, खुदावंद का नूर आप पर चमके। अब्दियत कबाब और सलामती का शहजादा आपको हमेशा सलामती बख्शे। खुदावंद आप सबके साथ, खुदावंद आप सबको बरकत। हालेलुया।